every dietitian is a nutritionist, Okay. but not every nutritionist is a dietitian. I get the clients, देखो दारू तो मैं नहीं छोड़ सकता, आप मुझे लिवर को ठीक रखने के लिए दवाई दे दो, वो माइंडसेट गलत है. बिग फैक्ट, घी इज हेल्दी. बैलेंस डाइट वो है जिसमें आपका जो प्लेट है उसमें आपकी इतनी वेजिटेबल्स हैं, इट्स लाइक वेजिटेबल्स कुक्ड है अनकुक्ड है, इतने कार्ब्स हैं, दिस मच, Okay. इतना प्रोटीन है और इतना फैट है. Myth versus fact. Eating after 8 p.m. causes weight gain. इट इज़ अ मिथ. अगर आप एक अपने कैलोरी गोल पे हो और आप एक अपने प्रोटीन गोल पे हो तो आपका मसल बिल्डअप होगा, बट वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, बॉडी को वो नहीं पता. फ्राइंग इज नॉट बैड, ओके, फ्राइंग इज गुड. और फ्राइंग में परांठे में ज्यादा घी लगता है, पूड़ी में कम लगता है. वी ऑल हैव अगेन, Yeah. देयर इज अ रिसर्च. इट्स जस्ट दैट कि फिर आपका बाकी लाइफस्टाइल क्या है. द बेस्ट वेट लॉस व्हाट यू शुड बी एमिंग टू अचीव. अगर मैं 80 kgs की हूँ तो मुझे एक साल में 6 से 8 किलो वेट लॉस करना एम करना चाहिए. 100 ग्राम ऑफ सत्तू हैज़ 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन. एक स्कूप वे also has 25 ग्राम प्रोटीन. However, अगर आप कैलोरी बाय कैलोरी काउंट नहीं कर रहे हो तो सत्तू इज अ गुड चॉइस. बेसिक सिंपल गुड डाइट सब्जी मंडी इज द बेस्ट ऑप्शन. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Today's episode is about well-being. We all want to live a healthy and happy life. But for that, the choices we make of what we eat and what we don't eat do matter. The food that we eat plays a major role in influencing our physical and mental well-being. Without eating healthy, which means nutrient-rich foods, and eliminating toxic foods from our plates and yes, glasses too, we will not have the energy levels to achieve the goals in life or live long enough to be productive for ourselves and our families. In our studio today is Dr. Sonia Narang, who's a nutritionist and dietitian. Dr. Narang will break all myths and tell us about the facts and reality about the choices we make about our food. Dr. Narang, thank you so much for being part of the podcast. Shalini and I are very happy to have you here. We have a number of questions. First and foremost, I need to ask you, what is the difference between a dietitian and a nutritionist? Are they two separate things? Do they go together? What is the difference, since you're both? Yeah. Okay, yeah. Thank you so very much for having me here. Thanks to you. And thank you for bringing it up, this topic in particular. Ki what is the difference between nutritionist and a dietitian? Okay. So, basically, दोनों हैं तो healthcare professionals. But just like किसी भी field में एक hierarchical order follow होता है. हाँ. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनसे हम कुछ पढ़ते हैं, तो हम उनको टीचर बुलाते हैं, राइट? या हम शिक्षक बुलाएंगे, या अध्यापक बुलाएंगे, या आचार्य बोलेंगे, या हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उनको गुरु बोलेंगे. तो हम ये जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको बहुत कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनका डेप्थ में मीनिंग अलग है. Okay. देयर इज अ हायरार्की. अच्छा. शिक्षक अध्यापक, मतलब इट इज शिक्षक, देन अध्यापक, देन उपाध्याय, देन आचार्य, guru and pandit. Okay, I didn't even know that. Yeah. So basically this hierarchy is based on their qualifications and their experience. So Shikshak is the normal teacher, jo he's teaching in modern education and academic studies, and Adhyapak would be a formal teacher in higher education. Acha. Upadhyay is somebody who's a teacher in religious and traditional subjects. Okay. Acharya is somebody who's teaching in philosophies and scriptures. Guru is the mentor who has a profound wisdom and experience. And Pandit is somebody जो सबसे top पे hierarchy में है, who's into Vedic education. Okay. So now coming back to the dietitian and nutritionist. So there also is a difference again based on the qualifications, regulations and the role they play. Okay. But हम interchangeably use करते हैं. So much so, Smita ji, that I myself am a dietitian. But if you see my socials, मेरे Instagram पे what it appears to be a nutritionist.
Okay. बिकॉज इंस्टा पे कोई प्रोफाइल कैटेगरी ही नहीं है डाइटिशियन के लिए. Oh, The term nutritionist serves both for and it's supposed to be a futuristic social media yes, platform. yes. So और उसमें it's a generalized term Okay. that it is who's serving both. हाँ. Now dietitian is over and above a nutritionist. So to be a dietitian, you need to have a bachelor's degree in home science, जिसमें आपका जो last year, final year का जो आपका subject है, वो food science and nutrition है. Then you have to have a master's degree in food science and nutrition, or maybe a diploma in PG diploma in dietetics and public health nutrition. Uske baad you need to have a supervised internship in an accredited hospital like Safdarjung hai, AIMS hai. Okay. Now you're a dietitian and you can provide a medical nutritional therapy to your clients for their specific health conditions, or maybe if you're practicing private, then you can cater to your clients or the patients. Nutritionist on the other hand, उनका कोई they may or may not have a degree, and it could also be some fitness enthusiast जिनका who's working on it as a side hustle. कि मुझे Okay. पसंद है तो मैंने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया, मैंने कोई शॉर्ट सर्टिफिकेशन कर लिया, बट कोई रेगुलेशन नहीं है पर इसमें. वो करते क्या है न्यूट्रिशनिस्ट? मतलब दे नो फूड Yeah, बट दे so- डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ फूड, ऐसे है कुछ? It's difficult to technically हाँ. state it like that, but क्योंकि somebody कोई who's पैरामीटर्स नहीं है, कोई हाँ. रेगुलेशन नहीं है. सो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं, दे कैन गिव यू एन एडवाइस ऑन डाइट, हाँ. बट दे आर नॉट क्वालिफाइड टू केटर टू द मेडिकल नीड्स. ओके. दैट इज द डिफरेंस. तो वेट लॉस क्लिनिक्स में डाइटिशियंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट पोजिंग एज डाइटिशियंस भी हो सकते हैं ना? एग्जैक्टली. वो यू हैव टू बी केयरफुल. वो या यू गॉट टू बी केयरफुल. सो वी कैन पुट इट लाइक दिस कि डाइटिशियन इज अ स्मॉल सर्कल इन अ बिग सर्कल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट का. अच्छा. So every dietitian is a nutritionist, Okay. but not every nutritionist is a dietitian. ओके. So that is the difference. And मतलब ये दोनों मुझे लगता है ये terms ना इंटरचेंजेबल हो जाते हैं. इंटरचेंजेबल इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि डाइटिशियन वर्ड में डाइट आ रहा है, तो हमें लगता है अरे आजकल हर कोई डाइटिशियन बना हुआ है, हर कोई डाइट देता है. हाँ. न्यूट्रिशनिस्ट में न्यूट्रिशन आता है, हमें लगता है शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, शी विल लुक आफ्टर माय न्यूट्रिशन. हाउएवर जो क्वालिफिकेशन है, जो पैरामीटर्स हैं, वो अलग है. डाइटिशियन इज अ पर्सन जिन्होंने अपना प्रॉपर से 5 years दिया है इस फील्ड में, फिर साथ में सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप किया है. न्यूट्रिशनिस्ट का शी कैन बी अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, बट उनका कोई रेगुलेशन नहीं है. We're now going to go into this myth or fact segment. So the team has put this together. Some of it is even I am not sure what it is. I think no one has kept some secrets out here. Myth versus fact. Eating after 8 p.m. causes weight gain. Such myth Yeah. or fact? It is a myth. Really? Yeah, it is a myth. So, whether X amount of food you distribute throughout the day, or you have that in the first half of the day, or you have it all in the night, it will not make a difference on your weight in the long run. Okay. तो एक baseline कैलोरीज चाहिए होती है जिसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं, जो आप करंट वेट पे हो उसको मेंटेन करने के लिए. उस मेंटेनेंस कैलोरी से एनीथिंग ओवर एंड अबव द मेंटेनेंस कैलोरीज इज गोइंग टू गिव यू द वेट गेन. एनीथिंग लेस देन दैट इज गोइंग टू गिव यू द वेट लॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस टाइम पे वो ले रहे हैं इन द लॉन्ग रन. सो व्हाई एम आई रिपीटिंग लॉन्ग रन अगेन एंड अगेन? बिकॉज अब जैसे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और मुझसे बात करके आपको अच्छा ठीक है लेट मी ट्राई, तो हमने वो सारी मेंटेनेंस कैलोरीज रात को खाई, सुबह तो हमारा वेट बढ़ गया. सो वो तो कह रही थी कि अरे कुछ किसी भी टाइम खा लो. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो शॉर्ट टर्म में आपका नेक्स्ट डे वेट बढ़ा हुआ जो दिखाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, बाउल मूवमेंट, हाइड्रेशन. आप रात को लेट खा रहे हो, इसका मतलब है आप शायद सोए भी लेट हो, लेकिन उठ आप उतने ही टाइम पे गए हो जितना रूटीन में उठते हो. Correct. विच मीन स्लीप डेप्रीवेशन है. स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से भी वाटर रिटेंशन है, पफिनेस है फेस पे, रिंग्स टाइट हो गई हैं. सो दीज आर द रीजंस कि इस टाइम पे ये शॉर्ट रन में आपका इतना वेट गेन हुआ है. हाउएवर हैविंग सेड दैट, अगर हम 8 PM की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात नहीं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप 8 PM तक डिनर अगर कर लोगे तो यू विल हैव मोर टाइम फॉर योर डाइजेशन, विल हैव लिटिल टाइम, डाइजेशन बेटर होगा, ब्लोटिंग रिड्यूस होगी, शुगर लेवल्स बेटर कंट्रोल होंगे. नेचुरली आप फिर टाइम पे ही सोओगे, इसका मतलब है आप सर्केडियन रिदम भी फॉलो कर रहे हो. तो इसका मतलब है कि हेल्थ के लिए इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है. वेट के लिए, as I said, that is about the calories. Okay, so weight and health, two different issues. Yeah. Right, next one, shall we go? Carbohydrates is bad for weight loss. Myth or fact? Myth. Wow. Okay, viewers and listeners and me,
break that down for me, please, Dr. Narang. Yeah. So carbohydrates bad for weight loss ना, ये स्मिता जी, I'd like to add a line here कि जो कल रंग थे वो अब दाग हो गए, जो कल भोजन था वो आज फैट, प्रोटीन हाँ, और कार्ब हो गए. breakdown. मतलब हम जो पहले हम जिस चीज़ को एंजॉय करते थे, जो रंग थे, वो हम उनको दाग बना रहे हैं आज. तो वैसे ही जो हमारा फूड था, जो होल फूड था, उसको हमने ब्रेक डाउन ऐसे कर दिया और बोल दिया कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर वेट लॉस. नाउ लेट्स अगेन कम टू जो हम पहले बात कर रहे थे, कैलोरी इन कैलोरी आउट. दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द वेट लॉस, जिसको कहते हैं CICO. ओके, अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और अगर मैं 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ, वेट लॉस विल बी देयर ऑन द स्केल. अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और मैं 2500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली द वेट गेन ऑन स्केल विल हैपन. नाउ इट इज़ इररिस्पेक्टिव कि आप वो कैलोरीज, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन किससे खा रहे हो. यू नो, ये मिथ आता कहाँ से है? वी नीड टू रिमेंबर कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द वंस विच आर नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, मैदा है, जब आप मैदा खाएंगे तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करेगी, यू विल शो अ वेट गेन. जैसे आपने रात को नान खाया तो सुबह आप देखोगे 1-1.5 किलो वेट बढ़ गया. Yeah, that's true. सो इट इज़ द सेम लॉजिक कि वो वाटर रिटेंशन की वजह से बढ़ा है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो दिस होल नैरेटिव शुड एक्चुअली बी अबाउट the carbohydrates which are there in the cookies and the chips, not for the whole grains, the nutrient dense whole grains which are good for your health in the long term. That is ragi and all. Millet diet is very much in. I have seen in hospitals also. They have also started. What is the concept? Yeah. Is it good for health? Yeah. हेल्थ के लिए ना बाइनरी आंसर्स हो नहीं पाते हैं कि यस और नो हो नहीं पाता. सो डाइजेशन के लिए अच्छा है. या सो यू नो, इन आवर कंट्री मतलब अर्लियर तो सब कुछ मिलेट्स ही था, रिमोट एरियाज में भी और भी जौ, जवार, मतलब सब कुछ था. फिर जब वो वीट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो वीट आ गया, और वीट इतना ज़्यादा आ गया फिर हम भूल गए अपने मिलेट्स को. एंड नाउ ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड कि मिलेट्स का अवेयरनेस शुरू हुआ है. बट मिलेट्स आर गुड एज कि हम एक ही फ्रूट तो नहीं खाते हैं ना, कि आप डेली एक ही फ्रूट खाओ. देयर हैज़ टू बी अ वैरायटी. सिमिलरली, चाहे वो मिलेट्स हैं, मतलब ग्रेन्स कह लें, चाहे मिलेट्स हैं, चाहे सॉल्ट है, चाहे शुगर, चाहे मिलेट्स हैं, चाहे सॉल्ट है, चाहे फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे ऑयल है, आपको हर चीज़ रोटेशन में खानी चाहिए. Okay. when we talking about millets, it is good that we getting aware. लेकिन जब आप मिलेट्स को ओवरडू करते हो, people don't realize कि थायराइड में वो काम नहीं करता. It is not good for thyroid. हाँ, okay. सो वी नीड टू फिगर आउट कि हमने हर चीज़ को मॉडरेशन में, पता है ये पूरी इंडस्ट्री में जब हम बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स. इट हैज़ टू बी अ रोटेशन, इट हैज़ टू बी सीजनल. डाइट डायनामिक्स रहते हैं. आप पूरे साल देखो, वी आर इन नॉर्थ इंडिया, तो सर्दियाँ, गर्मियाँ, बीच में 2 बार नवरात्रि, बीच में 2 बार कितनी बार बीच में फेस्टिवल्स आते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ द थिंग्स एंड द ग्रेन्स, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. या सीजनल शुड बी द थिंग. Millets is very much in. मतलब हर कोई चाहता है कि millets they should follow. For children It's just also. that, I think right now the promotion of millets is also that हम लोग टेस्ट बड्स डेवलप करें. इट्स नॉट कि रोज आप ज्वार का ही आटा खाओगे एंड ऑल दैट. कभी कभी चावल भी खा लो, कभी वीट भी खा लो, बट एटलीस्ट वो रिजेक्शन तो नहीं हो रहा ना. मतलब इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर यू नो कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल, none of us grew up with burgers and all that, right? It came in slowly. So you introduce new foods and all, so you introducing a good food for a change. Variety, That's even true. for the gut bacteria. We need to have the millions of the gut bacteria. अभी जो हम बात कर रहे थे ना मिलेट्स की, तो मिलेट्स का जो बेस्ट तरीका होता है कंज्यूम करने का, दैट इज़ कि उनको सोक करके, फर्मेंट करके तो खाएंगे. वेरी गुड, अमनी कहते हैं, तो ज़रूर खाओ. बट क्योंकि हमने अब पढ़ लिया, एज यू जस्ट कोटेड, मिलेट्स आर रियली इन दीज डेज. तो जो ये स्टेटमेंट है ना, रियली इन दीज डेज, इज समथिंग विच आई डोंट रियली अग्री विथ. हाँ. इन दीज डेज का मतलब वो फैड ही हो जाता है. आजकल इस चीज़ का बहुत फैशन है. True. तो दैट्स द फैड. नाउ कमिंग टू द मिलेट्स, अगर आप रूटीन में वही खा रहे हैं, फर्मेंटेड खा रहे हैं, बिकॉज हमने पढ़ लिया इट इज़ इन दीज डेज, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. बट इफ़ देर इज़ समवन जिसको सीबो की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ग्रोथ, तो वो ऑलरेडी इतना फर्मेंटेड है उनके अंदर, और आप और ज़्यादा उनको ये वाले फर्मेंटेड मिलेट्स खिला रहे हो. सो दैट इज़ वेयर आई वुड से रोटेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंटिन्यू विद गुड हेल्थ.
probiotics Yeah. वगैरह दे रहे हैं, that come with a whole lot of issues Yeah. themselves. You know, उसके ऊपर you're doing this, Yeah. you're just loading your gut with so Intestine. much, breakdown becomes next to impossible. Yeah. I'm guessing that's right. It's true. Yeah. Okay, myth versus fact. The next one: you can't build muscle on a plant-based diet. It is a myth. Because see, मसल बिल्डअप होता कैसे है, अगर आप एक अपने कैलोरी गोल पे हो और आप एक अपने प्रोटीन गोल पे हो, तो आपका मसल बिल्डअप होगा इररिस्पेक्टिव कि वो प्रोटीन, वो कैलोरी आपको कहाँ से मिल रहा है. मतलब वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, ऑब्वियसली कहाँ से मिल रहा है, मतलब प्रोटीन से मिलना चाहिए, बट वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, बॉडी को वो नहीं पता. ओके, अब ये डिबेट क्यों है? द डिबेट इज़, हम नॉन वेज और एक वेज का ग्रुप बना के चलते हैं. हाँ. सो द नॉन वेजिटेरियन वुड से कि आई विल हैव फिश, चिकन, रेड मीट एंड एग्स, I'm getting my सो आई एम protein. गेटिंग माई प्रोटीन. तो तुम्हें क्या मिल रहा है? पनीर और दूध. द वेजिटेरियन दही. वुड से Yeah. मेरे पास दूध है, पनीर है, दही, लस्सी, नट्स, दालें, Yeah. सोयाबीन एंड किनोआ. तो हाउ डू यू से कि मेरे पास प्रोटीन नहीं है? द नॉन वेजिटेरियन नाउ वुड से कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, शादी पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने फ़िश नहीं खाई तो मैं चिकन खा लूँगा, चिकन नहीं खाऊंगा तो मैं मीट खा लूँगा. तुम क्या खाओगे? तुम्हारे पास तो वहाँ पे पोटैटो है, पनीर है, भिंडी है, तो तुम क्या ही करोगे? द वेजिटेरियन वुड से कि वो तो फिर मेरे पे डिपेंड करता है ना. It's a never-ending fight. सो द वेजिटेरियन वुड से कि वो तो मेरे पे डिपेंड करता है. पनीर है ना, सो इट्स अबाउट ऑब्वियसली डिफिकल्टी ऑफ चॉइस रहेगा. मुझे हाँ. मतलब इट्स नॉट दैट ईजी, Yeah. बट इट्स नॉट दैट इट्स नॉट देयर. So I'll have a conscious effort and a good choice, and my decision should be there that what I need to have. So don't say कि मेरे पास है नहीं. The non-vegetarian now would say 100 ग्राम फिश में हम 20 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं. द वेजिटेरियन वुड से 100 ग्राम पनीर में हम भी 20 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं. द नॉन वेजिटेरियन आई वुड से बट फिश इज़ अ लीन प्रोटीन. हाँ. तो उसमें आपको वो कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं और आपको फैट नहीं मिल रहा वैसे वाला. द वेजिटेरियन वुड से तो हम तो यहाँ प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में कैलोरी और वो मैं कहीं और पे कैलोरी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा. Correct. So the moral of the story here is every non-vegetarian food has protein, but it's not that every protein has to be a non-vegetarian. There are the other sources also. When you are speaking with people, they'll say कि हमें थोड़ा ना मसल बिल्डिंग करनी है, तो हमको प्रोटीन की क्या जरूरत है? हम we are not into body building. Yeah. So two things: the difficulty in finding protein for a vegetarian, and two, muscle. The myth of that women, for example, don't need muscle. हमने थोड़ा ना body building करनी है. This is what. Yeah. So I think we have like a lot of questions Yeah. in one go. One by one, yes. So we were discussing कि ऐसा नहीं है कि vegetarian sources नहीं है, but I don't deny कि थोड़ा आपको conscious effort करना पड़ता है, थोड़ा decision आपका better होना पड़ता है. If you're prioritizing कि मुझे प्रोटीन चाहिए, but आप वेजिटेरियनिज्म में आपको प्रोटीन मिल जाता है, डिफ़िकल्टी का डिग्री है. हाँ. एंड नाउ दैट आई एम ट्रैवलिंग एंड नाउ दैट एज वी सेड कि हमें बाहर क्या क्या मिलता है, तो उसमें आपको फिर से कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि आप खुद से अपने नट्स एंड सीड्स कैरी करो. आपकी चॉइस है, अगर आप प्रोटीन पाउडर कैरी करो. जस्ट मेक श्योर कि आपके हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन है. आप पोहा खा रहे हो तो उसमें पीनट ज़रूर ऐड करो. और दाल ले रहे हैं, दाल चीला ले रहे हैं, बेसन चीला ले रहे हैं, किनोआ ले रहे हैं, सो उसमें कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. Okay. नाउ फॉर दोज वुमेन हुड से कि हमने कौन सा बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड सी जेनरिक स्टेटमेंट है. प्रोटीन और लिफ्टिंग वेट्स इज नॉट कि हमने कौन सा बॉडी बिल्डिंग करनी है. मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ हेयर. एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो I'd like to कि मैं अपना सूटकेस खुद उठा के सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकती हूँ. दैट इज व्हाट द प्रोटीन एंड द वेट लिफ्टिंग इज अबाउट. इट्स अबाउट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड व्हेन वी आर एजिंग, 10% ऑफ मसल मास हर 10 years में वो लॉस होता है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छे से हो, होलसम डाइट हो, साथ में वेट लिफ्टिंग हो, ताकि हम एक अपना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके. अदरवाइज विद एज कम्स सार्कोपीनिया, दैट इज द लॉस ऑफ मसल, वेयर वी हैव सीन द एल्डरली दैट दे आर नॉट एबल टू वॉक, और व्हेन दे फॉल दे हैव द muscle tear and ligament tear and fractures. So nutrition is about that. It is aesthetic, of course. हम सब बात करते हैं, हम सबको अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है, but nutrition is also about this. yeah. The next one that we can go to: drinking 8 glasses of water a day necessary for everyone, myth or fact? This is a fact. So 8 glasses of water is like roughly 2 liters is the baseline that I recommend. But if somebody is into physical activity,
तो आपको पानी थोड़ा और ज़्यादा पीना चाहिए. अगर आप एक क्रिएटिन होता है, अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं, सो देन आपको 2 लीटर की बजाय इवन 4 लीटर पानी पीना चाहिए. एंड अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी इज़ अ डायूरेटिक, आपका सिस्टम ड्राई करती है, तो आपको 8 ग्लास से ज़्यादा और पानी पीना चाहिए. अल्कोहल ले रहे हैं तो भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए. हाउएवर अगेन थोड़े से सिम्टम्स हैं. अगर आपको लगता है कि आई एम ऑलरेडी पार्च्ड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मेरा गला सूख रहा होता है, दैट मीन्स कि आपका लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप शायद कम पानी पी रहे हैं. यू एडजस्ट टू दैट. सो इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, कि ना तो मैं पार्च्ड फील करूँ, सूख रहा है गला, और ना मैं ओवर कहीं मैंने सुन लिया तो मैं इतना ज़्यादा पानी पी गई कि नाउ आई एम हैविंग नॉजिया और मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट. सो पीपल व्हेन दे गो टू द फैड वाला हो जाता है कि आजकल ये चल रहा है, सो दे वुड से कि पानी पी लिया तो वो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सारे यूरिन के जरिए निकल गए. तो एक्सट्रीम इज नॉट गुड. 8 ग्लास 2 लीटर is good. Bare minimum, you're saying. Is the baseline for the metabolic functions. And if you have about 3 or 4 cups of coffee in a day or tea in a day, then add a couple of more glasses of water. 1 cup of coffee, extra 1 glass. And if you live in dry climate areas, then more. Right? Yeah, then because more evaporation and all those things will happen. And so if you live in monsoons ke dauran पानी you drink more or should drink less, कि क्या करना चाहिए? Totally your body cues. How your body is dealing with it. Again, depending upon how much do you sweat or you don't sweat also is the difference. And पानी के साथ ना, I'd also like to add, because people think 8 glasses of water is the hydration. So water is not the hydration. Hydration is also your electrolytes, कि आपको 8 ग्लास पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ये सब पीना चाहिए ताकि electrolytes रहें, fluids. Right. Then we go to supplements are necessary to meet nutritional needs. Somewhere in between. We can discuss this. It's a myth that it's a necessary to meet nutritional needs. देखो, if you are eating wholesome meal and you're meeting your nutritional needs, there is no such thing as wholesome meal in Indian cities. तो वो हमारा next sentence होगा. if बोला था हमने. So अगर आपका होलसम मील है मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, आइडियल सिचुएशन में हम बात करें, तो फिर हमें सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी देन. हाउएवर वी ऑल नो, मैं ठीक से खा नहीं पाती, मुझे टाइम नहीं मिलता वगैरह वगैरह, या मेरे सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब मुझे फटीग है, पेन है वगैरह, then obviously it is advised that you must eat a supplement than actually continue to live in the deficiency and the misery. Okay, now how it should be, again I'm very fond of this word hierarchy. It should be whole foods पहले, prioritize. वो नहीं हुआ, then take the supplements. नहीं लेने, then you continue to live with the deficiency. That is how it is. अगर आपको कोई मल्टीवाइटामिन लेके या जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराओ टू फिगर आउट कि क्या है एग्जैक्टली डेफिशिएंसी किस चीज़ की है. डॉक्टर से सलाह ज़रूर लो, सेल्फ मेडिकेट नहीं करो. डॉक्टर ने जितने भी स्ट्रेंथ का वो डोज, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए दिया है, उतना लो. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद इट. लिया ही नहीं या ओवर कर लिया. आई कम अक्रॉस अ क्लाइंट, विटामिन बी की जो मैक्सिमम रेंज होती है दैट इज़ 900 समथिंग, एंड शी स्टार्टेड फीलिंग गुड विद द B12 का. शी हैड टेकन द इंजेक्शन एंड देन द मेंटेनेंस ओरल डोज. So she started feeling good and she continued to have the B12 का supplement, and she said कि मेरे यूरिन में पहले तो पीला आता था, क्योंकि B12 लेते हैं तो यूरिन थोड़ा कलर पीला आता है. She said अब थोड़ा रेड आना शुरू हो गया. So I said ब्लड टेस्ट कब करवाए थे आपने? So she said वो तो बहुत पहले की बात है जब B12 कम था. We got the blood test done. Her B12 levels were 1300. And the normal 900 is the maximum. Oh. So actually आपके मतलब that is the vitamin toxicity. So I've never heard of somebody having toxicity. vitaminosis कहते हैं, vitamin toxicity कहते हैं. So now मतलब आपका deficiency है, आप उसको cater करो. आप एक optimum level पे पहुंच गए उस vitamin का जिसका आपको deficiency था. Please make sure कि diet से आप उसको maintain करो. Okay. And एक group of people है, मुझे नहीं खानी ये गोलियाँ मैं ठीक कर लूँगा. lot of people are there. Right. That is also wrong, क्योंकि आप बहुत पेन है, एक है, मगर आप नहीं उसको cater कर रहे, ध्यान भी नहीं दे रहे. दूसरा ओवर एंथुजियास्ट वाला भी ग्रुप है कि खाने कोविड के टाइम में इतने सारे थे ना कि विटामिन सी और जिंक भी लेना है, फला भी लेना है, दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह.
And they continued with it post-COVID. So that is the point, Smita ji, कि Yeah. डॉक्टर ने एडवाइस किया था. So this is where the doctor is there in the picture. Please go and ask. आप Yeah. self medicate नहीं करें. So over enthusiast जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, डाइट नहीं ठीक करना, ना हेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड भी पूरा खा रहे हैं, लेकिन आई हैव सीन लोगों के शेल्फ पे बहुत सारे ये फैंसी विटामिन की गोलियां हैं कि हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं. And it's not so much here as it is in developed Yes, countries in yes, America yes, and all yes. that. They have vitamin shops. Yeah. And there's a lot of pushing of that, you know, are you feeling tired? Are you feeling exhausted? Are you stressed out? Take these supplements to feel good. Is your skin pallor low? I mean, all of us have skin pallor low. The Yeah. pollution में रहते हैं तो Yeah, everybody yeah. has skin issues, Yeah. right? तो उसके लिए take E, take this, take that. And then you feel कि हाँ, there's going to be magic. Yeah. You know, so either you go through internet में जो filters हैं अपने photo के लिए, Yes. or you take the pills. Yeah. Those are the easier ways of doing it rather Yeah. than through the diet. you राइट know? राइट राइट. सो वही है कि फिर जो ओवर एंथुसियास्ट होके अल्टीमेटली कोर था कि आपने अपना लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज करना है, वो नहीं किया, आपने ये गोलियां खानी शुरू कर दी. लिटरली आपका लिवर और किडनी इज अ साइट ऑफ डिटॉक्स, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन. खाना ठीक नहीं खा रहे, उसका जो डैमेज है, उसका जो मतलब जो डिटॉक्स करने का जो बेचारा लिवर है वो ओवरकम कर रहा है. ऊपर से आप ये वाली कॉन्सेंट्रेटेड गोलियां ज़्यादा खिला रहे हैं, तो अल्टीमेटली योर लिवर किडनी हेल्थ डज गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. फिर आप लिवर और किडनी की हेल्थ के लिए गोलियां खा रहे हैं. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, रीड द वर्ड सप्लीमेंटेशन मीन्स इट इज सप्लीमेंटेशन टू द thing, मतलब it is an aid to wellness. So supplements is not a magical thing for health. It is helping you to help yourself. Okay. कोई मैजिकल ये खुद से नहीं है, आप खाएंगे, बाकी सब कुछ इम्प्रोवाइज करेंगे, दैट इज़ वेयर इट्स गोइंग टू हेल्प यू. Is it suitable if we give supplements to children? क्योंकि आजकल बहुत सारे supplements available हैं. Doctors are also recommending since the age of 5. Okay, you can start for maintaining the weight, height, and everything. Do you recommend for height also? Yeah. Why would you take a supplement for height? Yeah, they give it is a wholesome supplement. You can give it to your children, and I think this is because they don't what doctors or what dietitians are recommending, that children are more they are more into having junk foods. The junk foods are going to replace the supplements. This is what they are recommending. What do you think? No, Shalini, I believe यहाँ पे ना, first of all, as mothers we need to take the responsibilities. बच्चे वो मिमिक करते हैं जो हम बिहेव करते हैं. मैं बोल रही हूँ वो अलग है, लेकिन मेरा बिहेवियर अलग है. सो मेरी अगर अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, मेरे अपने फ्रिज में वो सारा जंक भरा हुआ है, मेरी पूरी पैंट्री में सब जंक भरा हुआ है, आई एम कीपिंग ऑल दोज क्विक फिक्स एंड द रेडी टू ईट वाला मील्स एक्सेट्रा अगर मैंने रखा है. सो बच्चों का भी, वी आर इन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट. आप बच्चों को कितने टाइम तक किड्स आर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन दिस इज़ फॉर अस कि वो इन्फॉर्मेशन फनल थ्रू उनके कैसे होती है. एंड दैट इज़ एवरी डेज टास्क दैट यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू दिस कि पीडियाट्रिशियन अगर एडवाइस कर रहे हैं, आई बिलीव वन इज़ दैट pediatrician is seeing the child's health, उसका development कैसा है. Second is also he is probably seeing the mother's thing also, genetic क्या चल रहा है, इनका lifestyle कैसे है और इनके घर में किस चीज़ की हो सकता है जो problem चल रही है. Because of the Google also, no ma'am. आजकल Google में the information is available easily. What they do, mothers are like, they will search something. Okay, this is better for us. So doctor is not recommending. This is what they want. Yes. So दोनों चीज़ें चल रही हैं. दोनों चीज़ें हैं. Yeah, that's what And I'm I have saying. seen one probiotics also. मतलब चिल्ड्रन आर लाइक ये तो मम्मा दिस इज वेरी गुड है ना, ये तो मतलब दिस हैज बिकम समथिंग एडिक्शन काइंड ऑफ थिंग. ये तो पीना ही है एक बार. गट बैक्टीरिया होते नहीं है. So we need to have something for gut bacteria. That living in cities and having a bad lifestyle means that our gut bacteria are non-existent. True. So do something to kickstart metabolism by taking probiotics. Yeah, if your diet has been compromised, there's a lot of detailed information again. Yeah. Ki gut is basically the intestine, right? A lot of people think gut is like from the entire digestive system, starting from mouth to the food pipe to the stomach, liver, and of course that is also part of it. But the gut basically is the intestine, and intestine is like a pipe की तरह समझ लो, pipe ही है ना. तो उसमें, लेकिन उसमें ऐसे करके उसकी जो लाइनिंग है वो ऐसे करके सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स हैं. Now what happens is कि
इंटेस्टाइन क्या करती है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स वो ब्लड स्ट्रीम में फिल्टर थ्रू कर देती है थ्रू द गैप्स ऑफ दिस जो एपिथेलियल सेल के गैप्स हैं, तो उसमें ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं मेरे इंटेस्टाइन के थ्रू। अंदर जो है इंटेस्टाइन के वो अनडाइजेस्टेड फूड है, पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, बैड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है। बट अगर मैं अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हूँ, तो मैंने अब इंटेस्टाइन के अंदर वाला जो बैड बैक्टीरिया है उसको पावरफुल बना दिया, और उसकी वजह से मेरी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो थोड़ी सी लूजन अप हो गई क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया बढ़ गया। अब बैड बैक्टीरिया एंड द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द whatever the toxins are also getting into the bloodstream, क्योंकि पहले तो वो छन्नी पतली थी, अब छन्नी खुल गई। ओके, अब वहाँ पे हो जाता है कि अरे हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। So you bring the soldiers to beat the bad bacteria. Yes, so it is, yeah, if we put it like If this, there's a war going on in your yes, gut, Intestine gut. then you're bringing in these soldiers yes, to kill the bad exactly, bacteria. but then continue to feed those soldiers well, not that कि आप ले तो आए और वो बेचारा तो फिर भूख से मर गए क्योंकि आप उनको ठीक से खिला ही नहीं रहे। That is Yeah. the first thing at the So there first should be place. some option. मतलब Good diet is the best good diet, option. yeah, basic simple good diet, sabzi mandi is the best option. We have the next one, myth versus fact. Dairy products are essential for strong bones. Myth. Myth again. I tell you why, yeah, because ये तो बहुत ही twist करने वाला सवाल है। हाँ. So dairy products are not essential for, I mean, like we got to see it is not the dairy product which is making my bones strong. हाँ. It is what I'm getting from the dairy product. What I'm getting from the dairy product is calcium. Calcium is a mineral जिससे हमारी bones strong होती हैं. Now there are people जो lactose intolerant हैं, there are people जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो doesn't mean कि उनके पास फिर दूसरे कोई sources नहीं हैं कैल्शियम के। They can have almond milk, soy milk, nuts, broccoli, seeds. तो इसका मतलब है वो खा के भी तो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। हाँ. सो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर, calcium is essential for strong bones, fact. Not necessarily through dairy. Not necessarily through dairy. मतलब Okay. आप दूसरे प्रोडक्ट से भी, dairy is rich in calcium but there are the other products also जो कैल्शियम रिच हैं। तो अगर आप डेयरी नहीं कंज्यूम कर पा रहे, doesn't mean कि आपके पास दूसरे सोर्सेज नहीं है। Also, there are lots of people who say that अगर weight loss करना चाहते हैं तो reduce dairy. That's also not a whole truth, right? Yeah, like, that's- a bit of dairy doesn't harm. या in वो any स्मिता way. जी वो अगेन केस टू केस वेरी करता Vary है। अभी okay. रिसेंटली तो मोस्ट ऑफ आई मीन लाइक जो weight रील्स loss भी के चल लिए रही don't. हाँ, दे से कि डेयरी और वीट ग्लूटेन Gluten. ये छोड़ दो। हाउएवर इट हैज़ टू बी इन स्ट्रक्चर, एंड आई वुड से कि आप अपने जितने भी क्लोज टू योर एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में रहोगे उतना अच्छे से सस्टेन कर पाओगे। हाउएवर कहीं पे कुछ कमी पेशी है तो ट्वीक करो, डोंट स्विच इट 360 डिग्री कि मैंने 2 महीने कर लिया उसके बाद नो प्लीज आई नीड टू बी इन माई back, I mean like I need to be back in my comfort. In comfort, okay. Yeah. So next one that we are going to is juicing is a healthy way to cleanse the body. ये तो this is I think 10-year-old myth. ये तो it had been busted almost like there was a period where everybody was juicing that juice it fasting. began with that horrible that spinach juice and this juice. Yeah. So I think this is Variety of juices. Definitely a this myth is busted. है ना? This myth is busted, yeah. Yeah. So मतलब जूसिंग में ये है कि हम बात करें डिटॉक्स करने की, Detox, व्हाट वाज हाँ, जूसिंग हाँ. इज अ हेल्दी वे टू क्लेंस Cleansing, द बॉडी। हाँ. मार्केटिंग गिमिक भी है ये, हाँ. क्योंकि जो क्लेंस या डिटॉक्स वर्ड है ना, योर बॉडी मैकेनिज्म इज वेल वर्स्ड टू टेक केयर ऑफ इट। देयर आर द डिटॉक्स पाथवेज, जैसे लिवर है, किडनी प्राइमरीली, एंड देन देयर इज अ स्किन, देयर इज लंग्स, देयर आर ऑल डिटॉक्स पाथवेज। तो जूसिंग करके आपने अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक आप कर रहे हैं, वो उसमें न्यूट्रिशन का मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कैलोरीज का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फाइबर का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो इवेंचुअली आपका फटीग शुरू हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, लॉट ऑफ दूसरी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाउएवर येस, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट ABC जूस, जो एप्पल, बीटरूट, कैरेट कह लो, या आंवला बीटरूट, सेलरी कह लो, आंवला बीटरूट, कोरिएंडर कह लो, कुछ भी, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द होलसम डाइट, नॉट द डाइट इटसेल्फ। So Okay. that is the difference. If you do like juicing, then do the ABC. There are the Also other breakfast diets के लिए also. and things like that. I mean, people open up a juice can and drink the juice and think that they've got
विटामिन सी बिकॉज Yeah. एक कैन जूस पी लिया Yeah. या एक वो टेट्रापैक जूस पी लिया, दैट इज नॉट अ हेल्दी वे बिकॉज उसमें शुगर्स एडेड हैं. Exactly. Yeah. Right? Nobody reads the contents. I mean, Because- nobody is a sweeping statement. Many people don't read the contents. Yeah. And that's why it gets So- compromised. Yeah. So basically, at times the brand's name is also misleading, and we think कि Correct. हाँ ये ऐसे ही है, Absolutely. promising है. This हाँ. ghee is healthy. What do you think? Big fact. Ghee is healthy. I think ये जो Really? Yes, ma'am. Most of the dietitians recommend that you should have ghee. You should But avoid listen, other medically, and you'll be amazed to hear the facts कि पता है घी popularize, it rose to popularity, the myth rose to popularity back in 1970. जब ये बात US में हुआ कि fat is not good for you, आप carbs ज़्यादा खाओ, and how it turned out to be that people started following it, and how it turned out to be after some time the heart attack cases started rising. तो फिर हुआ कि नहीं, कार्ब इज़ बैड फॉर यू, बी ऑन लो कार्ब डाइट, फैट खाओ, लेकिन सारे फैट हेल्दी नहीं हैं, उसमें आप खाली वेजिटेबल ऑयल खाओ. एंड इफ वी लुक बैक, vegetable oil companies got an advantage of this, obviously, because they could do a lot of marketing and stuff. मतलब so much so कि vegetable oil की bottle पे heart की photo बनी होती है. This is heart friendly. Now coming back to ghee. Ghee is the superfood of all the foods. Ghee is the superfood. Ghee is the only fat which actually helps you burn your stubborn fat and the visceral fat. That's the only fat. आप अगर रोटी पे, चावल पे, I don't want to believe you. You know what I mean? Resistance because of conditioning. Conditioning. हाँ. That Go is what on. we need हाँ, to- अब रोटी और चावल पे. रोटी और चावल में आप जब घी लगा के डाल के खाते हो तो वो इंसुलिन स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है. घी हैज़ ब्यूटरिक एसिड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है. वीड बीन रीडिंग सो मच अबाउट आजकल इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन का इतना है, बट घी हैज़ ब्यूटरिक एसिड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है. Ghee has CLA, which is called as conjugated linoleic acid, which is very good for your metabolism. Ghee has vitamin A, E, and K2. Ghee is lactose free. It has casein. And now listen to this. How is it lactose free? दूध से तो बनता है. Because जैसे एग्जाम्पल है It कि breaks it. इट ब्रेक्स इट. जैसे हम बोलते हैं कि गन्ने का रस ठंडा है बट गुड़ गर्म है ना. Okay, इट इज द okay, फिजिकल got it. प्रॉपर्टीज हाउ इट इज. Right. सो नाउ इट टर्न्स आउट टू बी कि जिस यूएस में ये वाला सारा रिसर्च हुआ था और उन्होंने ये सब कुछ मार्केटिंग किया था, अब यूएस में घी के बारे में बोला जाता है और उसको घी नहीं, क्लैरिफाइड बटर के नाम से. Why should I believe the Americans when they've misled us every decade? Yeah, I think it's about but we have research. been having research also. I think Smita ji, let's not deny, we had been quite inferior for many years when we were like ruled. तो जो होता है ना कि आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट. आप अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, अपने जो वो है, तो हम बिल्कुल छोड़ के वी स्टार्ट बिलीविंग कि ये रिसर्च्ड है. और जहाँ पे रिसर्च हुए तो ऑब्वियसली यू टेंड टू बिलीव दैट मोर. Yeah. You don't see where the research is funded from. Yes. It could be a soybean getting the manufacturer who's advantage. who's Yes, funded the research, and Right. that they come to that conclusion. It's like coffee, na? True. हर एक साल में एक निकलेगा that coffee causes cancer, and अगले साल निकलेगा that coffee is very good for health Is because good for it's like liver. Exactly. पता है, मैंने यही वाला एग्जांपल दिया था, यही एग्जांपल मैंने दिया था कि मुझे many years back, I mean Shalini and I know each other since 15-20 years now probably. Almost. तो really yeah. okay, how sweet. हाँ. So yeah, she's a sweetheart. So but exactly the same thing, that once I'll get a call, ma'am, we're doing a story on coffee, how bad it is for health. There are the facts. We're doing a story on coffee, how good it is for health. There are the facts. So ultimately what really boils down to when it comes to these kind of facts is what really works for you. Okay. पता है यहाँ पे Ghee doesn't work for me. But then the point is also how you use it, na? If you're going to be eating a samosa fried in ghee, then ghee is not really exactly the so way to go. which oil then would be, मतलब I don't know. I'm asking you. Oh, अच्छा, it just like a फ्राइंग इज नॉट बैड. ओके, फ्राइंग इज गुड. और फ्राइंग में परांठे में ज़्यादा घी लगता है, पूड़ी में कम लगता है. वी ऑल हैव अगेन, Yeah. देयर इज अ रिसर्च. सो फ्राइंग गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि फिर आपका बाकी लाइफस्टाइल क्या है. हाँ, okay. Right. I get that. So that is where the
Okay, ghee is good for you. My mother will be smiling ear to ear. मुझे पहले ही पता मन्नू था. पता सी पहले हाँ मैम, इट इज लाइक ऑलिव ऑयल की बनी हुई टिक्की तो खा सकते हैं हम, है ना? हाँ, बट इट इज because- यूजलेस. You cannot fry. You cannot use olive oil like हाँ this, लेकिन ना? शालिनी मतलब ऑलिव ऑयल को भी हम यूजलेस नहीं बोलेंगे मतलब हाँ. द पॉइंट इज कि ऑलिव ऑयल हैज इट्स ओन बेनिफिट्स बट फ्राई करके नहीं खा सकते ना? नहीं फ्राई करके इसलिए नहीं खा सकते उसका लॉजिक सिर्फ ये है कि स्मोकिंग टेम्परेचर क्या है It So should not- yeah, it's like सरसों का तेल also तुम Yeah. जला के खा लोगे या वैसे खा लोगे, smell आती है. People, if you go to the south, they're using coconut oil and they fry coconut हाँ. oil, but the North Indians won't like that. Won't It's like also that. a culture thing yeah, in that, yeah. right? You know what? जो ये बात हो रही है ना कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं, एक कोई पोएट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, I'll definitely get back to you on this. He has this kind of a poetry करके उन्होंने पूरी बात बताई है कि एक बार चाय और लस्सी में लड़ाई हो गई. Okay. लस्सी बोलती है कि मैं इतनी सुंदर, मैं गोरी हूँ और तू देख काली कलवट्टी, तेरा क्या रुतबा है ना, मुझे देख कि मेरा असला कितना, मतलब मेरा whatever, मेरा औहदा कितना ऊंचा है. सो चाय बोलती है कि मे बी यू थिंक लाइक दिस बट आई एम एन इंटेलेक्चुअल ड्रिंक. जो शायर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अच्छे मेज़ों पे बैठ के अच्छे कप्स में मुझे सिप सिप करके पीते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल टॉकिंग होती है. सो लस्सी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पीने से कितना कलेजा जलता है, एसिडिटी हो जाती है, और मुझे पीने से कलेजे में ठंड पड़ती है. तो चाय बोलती है लेकिन तुझे पीने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बदन दर्द, और मुझे पीने से तो बदन में टकोर होती है, सेक मिलता है, पीपल फील गुड. और चाय उसको बोलती है कि तुझे कॉम्प्लेक्स है और तू खुद को सोच कि एक कुज्जा कहते हैं उसको, मतलब एक लोटे में ढक के तुझे साइड पे रखा रहता है, और मेरे लिए तो केतली भी बड़ी शानदार आती है. तो चाय लस्सी बोलती है कि ऑल सर एंड डन, तेरा जो दाग भी कहीं पे पड़ जाता है तो वो धुल नहीं पाता. तो चाय कहती है कि जिस बर्तन में तुझे रखा जाता है ना, उसको धो भी लिया जाए तो स्मेल नहीं जाती है. सो द फाइट कंटिन्यूज लाइक दिस. Yes. And How sweet. This is really I'll cute. come back Such a to you nice with this. example. Yeah. And I would think that I don't know why. I would always think that chai is a male and lassi is a female. है ना? Robust and something like that. कि, Divine. हाँ. And lassi is the sweet, nice घरेलू type घरेलू of. सोल. Yeah. अब ये दोनों की लड़ाई ऐसी चलती रहती है, और ऑब्वियसली डिबेट तो फिर एंडलेस है. तो लस्सी को बुरा ज़रूर लगता है कि भाई हायरार्की वाइज तो मैं सुपीरियर हूँ ना. चाय तो बाहर की कंट्री से हमें इंट्रोड्यूस की गई थी. चाय वाज नॉट हियर इन इंडिया. सो दे बोथ गो टू दूध कि हमें नहीं समझ आ रहा, आप ही हमारा फैसला करो. नाउ दूध लुक्स एट चाय, दूध लुक्स एट लस्सी, मतलब लस्सी तो उसकी अपनी पैदा की हुई, दैट इज लस्सी इज फ्रॉम दूध. बट चाय को भी मोर देन 100 years तो हो गए हैं. तो लस्सी को गुस्सा आता है कि ये मतलब आग मांगने आई थी, पुराने टाइम में इसको कहते हैं आग मांगने, कि आप बोरो करने आए थे, हमारे पास थोड़ी जगह रहने के लिए आए थे, और हमारे ही यहाँ पे बैठ गए, मतलब यहीं पे अपनी जगह बना ली. तो लस्सी को फिर ये वाला ग्रज है. तो अब दूध ये कहता है, बीइंग द एल्डेस्ट एंड बीइंग द मैच्योर, कि ये जो मसला है ये तुमने ऐसा डाला है जो सालों साल नहीं सुलझ सकता, क्योंकि तुम मेरी अपनी बेटी हो, लेकिन अब ये ऐसा पुराना गेस्ट है जो इतने साल मेरे पास रहा है कि वो भी मेरा ही पार्ट बन चुका है. आई कांट गेट अवे फ्रॉम इट. तो ये तुम अपने आपस में ही सुलझा लो, मुझे इसमें नहीं डालो. Understandable that you might as well make peace with it now. Yes. So do what is right for you. आपको जो आपके लिए suits you. जो Yeah, what suits your system. Yes. Okay. Next, eating papaya helps regulate your menstrual cycle. Yeah, it's a fact, but there are a lot of other factors also. Papaya में papain enzyme है जो help करता है, but then we need to dig deep into the other factors also कि reason क्या है जो आपका menstrual cycle अगर irregular हुआ है, कोई hormonal दूसरा चल रहा है, lifestyle issues हैं, stress है, lack of physical activity है, या iron levels कम है. So that is the That reason. could lead to yeah. Sonia, I just wanted to know what should be the balanced diet. Balanced diet में लेट्स लुक एट आवर प्लेट मॉडल्स, कि हमारी एक्चुअली जब हम खाना खा रहे हैं तो विजुअली हमें, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस कर पाएगा ना डे टू डे रूटीन में. और बैलेंस डाइट नॉर्मली हर मतलब एज का और हेल्थ कंडीशंस का, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है. हाउएवर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन टू फिगर आउट नाउ.
एंड हाउ आई टेल माई क्लाइंट्स इज कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें आपका जो प्लेट है उसमें आपकी इतनी वेजिटेबल्स हैं, इट्स लाइक वेजिटेबल्स कुकड है अनकुकड है, इतने कार्ब्स हैं दिस मच, Okay. इतना प्रोटीन है और इतना फैट है. सो व्हेन यू लुक एट योर प्लेट this is हाँ. how it should be Should look. comprising of, let alone the colors and the textures, and वो तो फिर आयुर्वेदा वाली भी बातें हो जाती हैं. हाँ. बट विजुअली जब आप अपनी प्लेट डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, बना रहे हैं प्लेट, this is how it should be. Okay. The balanced when we talk about. Okay. There's one study which says that Indian women consume 14% less protein than men, and another survey which says 73% of Indians are deficient in protein, while above 90% are unaware of their daily protein requirement. So, has it reached a time where we are at this, that it's a lifestyle risk that we have come to, or how do we come to know that for myself how much protein is needed? Do I need to do a blood test to get to know what my protein levels are and what I should consume to get over that deficiency? How do I get to know? Yeah. So our first question was that the research says that the 14% Women get of less, women yeah. get less protein. हाँ. I think Smita ji उसमें ना it is more to do with the social, cultural and economical factor. अगर हम Correct. इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आपने वो मूवी देखी है लापता लेडीज? हाँ, yes. Yeah. So do Yeah. you remember there's the scene there, the daughter-in-law is asking the mother-in-law कि आप कुछ भी बना लीजिए अपनी पसंद का. Okay, and she laughs कि मेरी पसंद. Exactly. The mother-in-law says कि अब इस घर में औरतों की पसंद का खाना बनेगा क्या? हाँ. हमें तो ये भी नहीं याद कि हमारी पसंद क्या थी. You see? Point. Yeah. So that is the Yeah. patriarchal society, and also it gives me the goosebumps when I talk like It is this. true but now. Yeah, it is true. All of us do that, right? Yeah, I mean, you go about asking आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, and then whatever everybody is, then you eat that. Yes, yes. So it is about the patriarchal society setup, कह लो. Also the motherly instinct of women that they keep themselves last. Right? They don't really prioritize. जैसे Yeah. उस सीन में था कि हमारी पसंद का खाना बनेगा क्या? मतलब they Yeah. themselves are putting themselves last. Further, I think traditionally the male dietary needs are prioritized. Assuming कि वो बाहर जाके मेहनत का काम करते हैं, मुशक्क़त का काम करते हैं, उनका फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो उनकी डाइटरी नीड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है. विमेन तो घर पे ही हैं, घर का ही तो काम कर रहे हैं. फर्दर विजुलाइजिंग द एंटायर सिनेरियो, प्रोटीन का मुझे लगता है उन्हें पता भी नहीं होगा. इट इज़ अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड. इफ़ वी टॉक अबाउट, जैसे पूरी इंडिया की हम बात करें, सो क्वांटिटी ऑफ फूड का मतलब है कि लेट द मेल मेंबर्स बी फेड, फिर जो बचा खुचा है हम खा लेंगे. इट इज़ अबाउट द क्वांटिटी. उसमें प्रोटीन वगैरह भूल जाओ आप. जितनी रोटियां हैं, दाल सब्जी चावल है, उन वो खा लें, उसके बाद हम खा लेंगे. इज़ ऑल्सो दैट they've been fed less. Also, it's only in the childbearing and the child nursing phase that the diet of a woman is concentrated to, upon, yeah. catered to, and things that Exactly. okay, she's going to give birth to the progeny of the family. Yeah. तो उस वक्त इसको दूध ज़्यादा नहीं Exactly, That exactly. happens in rural India. रूरल इंडिया में, है ना? Yeah. फिर दूसरा था कि 75% ऑफ Yeah. पीपल 90% are unaware of the protein unaware. requirement. Yeah. उसके लिए ना मुझे लगता है कि कल्चरली वी थ्राइव ऑन कार्ब्स. हाँ. हाँ, जन्मदिन, शादी, श्राद्ध, पूड़ी, खीर, समोसा, ये सब मिलेगा. तो कल्चरली वी आर रूटेड ना, सब कार्ब्स ही हैं. तो हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते. सो मच सो हमारी मूवीज़ बनती हैं बाय द टाइटल रोटी, कपड़ा और मकान. हमारे फ्रेजेस हैं, भूखे को क्या चाहिए? 2 और 2 4 रोटी. देन देयर इज दिस सॉन्ग, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां. हाँ. सो हमें पता ही नहीं है, मतलब अननोइंगली, सबकॉन्शियसली वी आर थ्राइविंग. इट इज रूटेड, एम्बेडेड है कि कार्ब्स. एंड ऑल्सो जैसे वो गवर्नमेंट प्रोग्राम है अनाज देने का, फ्री अनाज दे रहे हैं. 10 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, और अब तो इट कीप्स एवरीबडी इज कम्पीटिंग और कितना अनाज देंगे. इट्स अ कार्ब डिपेंडेंट Exactly. you know, a freebie which is being given, freebie या जो भी कहना चाहें आप उसको. स्मिता जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक अनाज का मतलब दालें भी आती हैं शायद. नहीं, बट फ्री में सिर्फ वो गेहूं, मतलब वही मिल रहा है. Yeah. मे बी अगेन, या बिकॉज वी Yeah. प्रायोरिटाइजिंग हियर द सोर्स ऑफ एनर्जी. because the food security was also catered towards paddy cultivation, Right, paddy right, buying, right. rice and wheat purchase. So उसी में है. अभी तक we haven't gone to the pulses stage. But they are giving bajra also, ma'am.
हाँ, अब बाजरा वो भी- अनाज में आ जाता है. हाँ, So okay, now They are it's a giving new thing. bajra. Okay, but that's bajras again. You're talking about like what, Rajasthan and maybe in UP, right? UP. हाँ, Basically, I have seen. it's only going there. Yeah, But yeah. even for your Not in every state. वो जो schools में जो midday meal होता है is also basically rice and dal Dal. and maybe one vegetable added. उसमें प्रोटीन नहीं है आंगनवाड़ीज में, right? आंगनवाड़ी So में. yeah, so that's what I'm saying कि हमारा culturally हम लोग embedded हैं and we thrive carb. on carbs, yeah, because source of energy and developing country रही है तो वही priority भी रही है. तो ये कैसे पता So- लगेगा? ब्लड टेस्ट करके पता लगेगा सो प्रोटीन इसके का? लिए ना मेजरली तो सिम्टोमेटिकली हम बात कर रहे थे कि इसका हेल्थ रिस्क क्या है. हाँ. तो नॉट ओनली जस्ट रूरल एरियाज, लेट्स टॉक अबाउट इवन द अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटअप्स में व्हाट आर वी डूइंग? एक्चुअली सिटिंग इन द काउच. Yeah. एंड पहले तो मार्केट जाके आप राशन लेकर आते थे, उठा के लाते थे. हमने रियलाइज नहीं किया बट स्टेप्स हो रहे हैं और लिफ्टिंग हो रही है, वेट लिफ्टिंग हो रही है. अब फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, Yes. रिलायंस. यस, एंड व्हाट इज गो टू फूड इज ऑलवेज कार्ब्स. हाँ. आप प्रोटीन, मतलब मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, गो टू फूड इज यूजुअली कार्ब. इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस जो कंफर्ट फूड है, गो Correct. टू फूड है, वो कार्ब्स है. हाउ इज इट पोजिंग हेल्थ रिस्क? बिकॉज अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आपका होल फूड ऐसे नहीं खा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड नहीं खा रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इश्यूज आएंगे. अगेन कमिंग टू व्हेन दिस जनरेशन वुड बी एजिंग, तो सार्कोपिनिया कितना ज़्यादा हिट कर जाएगा. So these are the potential health risks which we are not really, मतलब dig deep नहीं कर रहे हैं इसमें. So a week ago, a nutritionist urged Zomato and Swiggy to avoid using plastic containers. Yeah. And the Zomato CEO reacted and thanked him for bringing this up. Many of us don't understand the dangers of using plastics. जिसमें खाना आता है उसी को माइक्रोवेव में डाल दिया, Yeah. उसी को गर्म किया, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्लेट, क्योंकि फिर वो प्लेट धोना पड़ेगा, बाई नहीं Yeah. आएगी, कल सुबह तक नहीं आएगी, Yeah. तो फिर वो किचन के सिंक में पड़ा रहेगा. तो इससे Yeah. अच्छा उसी में से खाओ, डब्बे में से ही खाओ. Yeah. So what are the dangers, microplastics, and I guess it's something that you would as a young mother be worried about too. So the dangers of that. Yeah. So let's see. I mean, like, there has been enough, we've already talked enough about the dangers of plastic for the environment. But we all know it takes hundreds of years Yeah. to degrade. Yeah. Most of it ends up in the ocean. तो वो जो dangers हैं plastic के, let's really figure out and recall how the plastic has come to us in the first place. If you remember, I mean, like, जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि वो खाने की जो प्लेट होती थी वो पत्तल होते थे ना, पत्तों को सीव करके, सो पत्तल होते थे. एंड जो हमारी ग्रोसरी अगर आती थी तो वो अखबार के ही लिफाफे बने होते थे. Correct. ओके, तो That's gone. या Or some fancy stores might have them. That's all. यस यस, जो उस टाइम पे तो यही अवेलेबल था, है ना. तो क्या हो रहा है कि उस टाइम पे जब हम पेपर प्लेट या पेपर कप या पेपर बैग यूज़ करते थे तो हमें पता है पेपर मिलता है हमें ट्रीज से. तो लगा कि पेपर का ये सब कुछ यूज़ हो रहा है, हमें ट्रीज काटने पड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो लेट्स ब्रिंग एन ऑल्टरनेटिव एज प्लास्टिक. और प्लास्टिक आया क्योंकि वो वाटर प्रूफ है और वो ड्यूरेबल है और लाइट वेट है. तो हर चीज़ में प्लास्टिक आना शुरू हो गया. टू एन एक्सटेंट दैट here we are, what we're discussing today, that वो false narrative जब disrupt हुआ, now again we are coming back to the paper bags and paper या jute. That is what we should promote also. But now coming to the health issues, जब आप कोई गरम खाना या गरम ड्रिंक या चाय या कोई सिट्रस फूड प्लास्टिक में खाते हो, दैट डेफिनेटली माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें लीच आउट होते हैं एंड दैट डिसरप्ट्स योर एंडोक्राइन हार्मोन्स. प्लास्टिक बना होता है बाइस्फिनॉल ए और थैलेट से. सो जब वो गर्म फूड के कांटेक्ट में आएगा उसमें ये सारा माइक्रोप्लास्टिक लीच करेगा. तो नॉट ओनली जस्ट द एंडोक्राइनल हार्मोन्स, इनफैक्ट ओबेसिटी, डायबिटीज एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो. एंड नाउ व्हेन वी अर्ज कि हमें ये नहीं करना है, BPA नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली BPA फ्री प्लास्टिक आना शुरू हो गया. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन कि BPA फ्री प्लास्टिक है. हाउएवर BPA की जगह they are using BPS, BPF, And which that is structurally same, side Okay. effects are the same, but BPA फ्री तो है ही है ना. तो जब हम पढ़ते हैं BPA फ्री प्लास्टिक हमें लगता है ओ दिस इज सेफ, क्योंकि अब हमें अवेयरनेस BPA की आ गई है.
Okay. However, अभी भी उसमें phthalates भी use वही होते हैं. molecules हैं. Yeah, just the name has been kind हाँ. of switched and a little changed. However, larger picture में तो अगर आप the food has come, you can't avoid it, right? It's food when you order is coming in plastics. Turn it into your steel के बर्तन and गैस पे गरम कर लो अगर गरम करना है. और अगर नहीं माइक्रोवेव यूज करना है तो यूज सेरामिक और Glass माइक्रोवेव का, वाले ग्लास yes. जो बर्तन है उसमें गरम. Is that fine? that is definitely better than Than what we're plastic. doing in the current scenario. Yeah. Okay, so now with that we are going into danger foods and the things not to do. We've already talked about what we should do. So what not to do mein, when we were growing up, we only ate seasonal vegetables. Jaise now we are getting into monsoons, तो वो घिया तोरी type खाना होता है. You don't get cauliflower, you don't get you get bhindi, you don't get broccoli, cauliflower, Yeah, वो सब yeah. नहीं मिलता. Yeah. And similarly you don't once we hit October or whatever mangoes नहीं मिलेंगे. Right. पर अब we have become like Western societies. वही सब्जियां सालों साल you get the same vegetables. Right. You get winter vegetables in summer, summer vegetables in Yeah, winter. yeah. As a nutritionist, what would you advise? Seasonal vegetables खाना चाहिए या फिर ये भी एक old theory है ऐसे? Yeah. No, on the flip side, I'd say कि जैसे पहले घी को उस तरह से पॉपुलराइज कर दिया हाँ. था, उसी तरह से यहाँ पर भी बेस्ट न्यूट्रिशन व्हाट यू कैन गेट इज ऑलवेज द सीजनल एंड लोकल. दैट इज़ दी बेस्ट न्यूट्रिशन. आप जब सब्जी मंडी जाते हो, जो बेसिक जो सब्जियां गिरी होती हैं, क्योंकि वो इतनी हिंदी में बोलते हैं प्रचुर मात्रा में है, सो व्हेन दे आर इन एबंडेंस दैट इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन. Okay. सो व्हेन यू आर गेटिंग देम, अभी आम खा लो ना, आपने क्यों खाना है अक्टूबर नवंबर में आम? Yeah, that's also true. True. So it's not necessary that, but then again, it's a question of conditioning, right? So we automatically don't eat bhindi in winter. That Exactly. it's not done. Like you don't हाँ. eat it, but then you keep meeting youngsters who will eat bhindi even in winter. It doesn't So, matter. yeah. And some of us like abhi दिसंबर में भिंडी नहीं बनता हमारे घर में, so Yes. the traditional homes हाँ. don't do it, but I think So this is where we should be responsible कि जो सीजन में है वो खाओ. That is the best bright nutrient dense food. हाँ. तो Okay. जो सीजनल चेंजेस आते हैं वो पता चलता है. मैं नवरात्रे बेसिकली सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में आते हैं. रोजे उस टाइम पे आते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप सीजनल पे स्टिक टू करो. Your body पुराने accepts मिथ्स it है ना better. मैम, इट्स लाइक कहते हैं ना सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए. मतलब ये कहीं ना कहीं these things They are are interrelated. scientifically Yeah. backed. डॉक्टर सोनिया, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि आजकल क्या है, फूड हैज़ बिकम अ रिवॉर्ड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो. इट इज़ लाइक अगर इफ़ यू विल गेट अ गुड मार्क्स then we will give you this and that, right? Give you then children are also like burger chahiye, chow mein chahiye, they want momos are very much in. Then they want they are like we want होमवर्क कर लिया तो फिर मोमोज ऑर्डर कर दो. yes homework कर दिया, momos order कर दो. Then juices also, that tetra pack and all. So इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करें. एंड आई हैव सीन वन मोर थिंग दैट स्कूल्स आर ऑल्सो प्रमोटिंग अ लॉट दैट देर इज़ अ डे दैट इज़ जंक फूड डे. यू हैव टू ब्रिंग मनी. Small, I'm talking about kids are like 6-year-old, 7-year-old. They are demanding कि जंक फूड डे है, ममा मैगी रखना, कल मैगी पास्ता ही रखना. तो ये जो चीज़ें हैं ना, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स. ओके. सो शानी, सबसे पहले ना वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डाइट डायनामिक्स हमेशा रहेंगे. एज आई सेड कि आप हर टाइम एक ही तरह का डाइट नहीं खा सकते. स्पेशली अगर हेल्दी डाइट है तो वो तो रहेगा कि मैं सारा टाइम थोड़ी खा लूँगी, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ भी तो जीनी है, मुझे नॉर्मल सेलिब्रेशन भी तो करनी है. डाइट डायनामिक्स रहेंगे, बट 80-20 इज़ द प्रिंसिपल. 80% अगर मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे भी अच्छा खाना, मतलब जो न्यूट्रिशनल विजडम मुझे है, हम वो खाते हैं, तो 20% जब आप वीकेंड्स पे, बर्थडे पे, ट्रैवल में, किसी की सेलिब्रेशन में अगर आपने वो स्लाइस ऑफ केक खा लिया तो इट इज़ एब्सोल्युटली गुड, लाइफ हैपन्स. बट जो टर्म है जंक फूड करना, या जो टर्म है जंक फूड खाना, या जो टर्म है कि रिवॉर्ड दिया है, रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो गोइंग विद पैरेलली विद पनिशमेंट. ये किया तो रिवॉर्ड, ये नहीं किया तो पनिशमेंट भी तो होगा ना. Isn't it? हाँ. True. तो ये साइकी गलत है बच्चों में इनकलकेट करने के लिए.
ओके और उसको फिर हम फूड से एसोसिएट कर रहे हैं, तो फिर तो हम रिलेशनशिप विद द फूड भी ख़त्म कर रहे हैं. वो इंट्यूटिव ईटिंग का तो कॉन्सेप्ट कहीं पे आ ही नहीं रहा. सो आइड से एक्चुअली जो बच्चों को पसंद है वो आजकल के बच्चे हैं. मेरे टाइम वाले तो है नहीं कि घर में, मतलब हम शायद, मुझे याद है 2-3 महीने में एक बार रेस्टोरेंट जाते थे, वो भी बिकॉज माई डैड वांटेड कि हमें रेस्टोरेंट मैनर्स आने चाहिए. एंड दे यूज्ड टू बी लाइक सच, शायद कनॉट प्लेस में 2-4 रेस्टोरेंट्स थे 5 स्टार में थे. बट नाउ दीज चिल्ड्रन ऑफ कोर्स हैव सच एन एक्सपोजर कि आपने उनसे कैसे उसको प्रिवेंट करना है. बेसिकली एज अ सेट कि 80% जब आप उनका टिफ़िन पैक कर रहे हो तो उसमें ऐसे नट्स होने चाहिए, एक फ्रूट होना चाहिए, अच्छी सी सब्ज़ी होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए. साथ में आपने जो आटा गूंदा है उसमें धनिया डाल दो, उसमें कभी सेसमे सीड डाल दो. सो कीप योर न्यूट्रिशन गुड. नाउ कमिंग टू दोज डेज जब हम वो मोमोज़ खाने का कर रहे हैं, उसको कभी भी आपकी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए होमवर्क पूरा कर लो फिर हम मोमोज़ खाएंगे. दैट इज़ आवर ओन लूज स्टेटमेंट. और समवेयर हम ध्यान नहीं देते, इनसिक्योरिटी है ये क्या, बट बहुत ऐसा से ना कन्वीनियंस से हम बोल देते हैं. Any random day also, in the form of celebration and family time, you call for that meal which the child is fond of, than actually associating it every time as a reward or punishment. Okay, and for the schools I definitely urge, junk food day title ही गलत है. It can be, maybe we can find out some other title for my adult Indulgence day or something like that, or Smita even ji, that would be wrong. that would be wrong. Yeah. So I think जो Cheat भी day. हाँ शालिनी देखो अगेन, हाँ. चीट डे, चीट, इंडल्जेंस, जंक, आप ये वर्ड्स को दोबारा बोलो, दे ऑल ऑफ देम हैव अ नेगेटिव एनर्जी टू देम. सो लेट्स नॉट गेट देयर. हम Yeah. बच्चों को जो कर रहे हैं या जो मेरे एडल्ट क्लाइंट्स हैं, व्हेन दे आस्क फॉर चीट, सो आई काउंसल देम, चीट डे नहीं है, इट इज़ अ रीफीड डे. स्टिल कॉल इट. फॉर एग्जाम्पल रीफीड डे का मतलब है कि मैं अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बट एज आई सेड वी आर ऑल ह्यूमंस, वी माइट क्रेव फॉर समथिंग इन बिटवीन. यू टेल योर सेल्फ इट इज़ ओके, आई एम रीफीडिंग माई सेल्फ विद दिस थिंग विच probably is not healthy, but right now I know that in this portion I'm eating it and it's absolutely okay. My cells will cater to it in a positive way. Cheat बोलने से ना हम मतलब हम उससे punishment भी हो जाएगा फिर. If you're Exactly. cheating, you'll be punished. Absolutely. Yeah. Deprivation is wrong and food abuse is wrong. पेट भर गया लेकिन आप खाए जा रहे हैं और उठ रहे हैं तो भाई बहुत खा लिया, सांस भी नहीं लिया जा रहा, is a food abuse. So we are going to the two extremes. Always have, there is a difference between hungry and hunger और appetite में फ़र्क है. Hunger मेरी भूख, appetite मेरा लालच. So we need to, when we talk about diet counseling, diet is the food that is, but it is the counseling which is needed to the clients, to the people who are doing it. कि मैंने इतना dopamine rush था और वो वही बात है कि भरपेट खा लिया और उसके बाद सो गए, तो अल्टीमेटली वो मेंटली आपको कहाँ पे लेके जा रहा है. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो डू हैव राजमा चावल. इट इज़ सच अ हैप्पी संडे. इट इज़ सच अ गुड वाइब जब राजमा की वो सीटियाँ बज रही हैं और खुशबू आ रही है घर में, उसको एंजॉय करना है. नॉट दैट कि आज खा लो क्योंकि अब अगले 6 दिन तो मुझे पता है मैंने बिल्कुल डिप्राइव्ड रहना है. It should be in certain quantity. हाँ, और क्वांटिटी मैं नहीं सेट कर रही, आप नहीं सेट कर रहे हो, यही इनकलकेट करना है. क्वांटिटी कोई किसी के लिए सेट नहीं कर सकता. टुडे आई हैव ईटन सैलेड, आई एम गुड. टुमारो आई हैव ईटन हॉर्स, आई एम स्टिल हंग्री. वी कांट सेट अ क्वांटिटी, बट यू नीड टू फिगर आउट अपने लिए कि मेरी सेट क्वांटिटी एज इन मुझे कितना खा के कंफर्टेबल लगता है. माई सजेशन टू माई क्लाइंट्स वुड बी कि आप प्लेट में एक बार डालो जो आपकी आईज परसीव कर रही हैं कि मेरा इससे पेट भर जाएगा. आपने वो खा लिया, आपका पेट नहीं भरा, आईज ने तो डिसाइड सही किया था, पेट नहीं भरा. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड टू नाउ फिगर आउट क्या करना है. गिव इट अ पॉज, जस्ट maybe 2-3 deep breaths. That pause, you'll immediately figure out कि मुझे second helping की ज़रूरत है कि नहीं. If you still need it, please have half a roti. Give a pause. You still need, have another half a roti. बट उस पॉज में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये खाना है कि नहीं खाना. इंस्टेड ऑफ सिंग अरे डाइटिशियन ने कहा था एक ही रोटी खानी है यार, मम्मा मुझे बहुत अभी भी भूख लग रही है, एंड यू बीइंग ग्रम्पी एंड यू बीइंग वेरी एंग्री. But not many people have, have deprived themselves all week and then do the
the Sunday binging. The Sunday binging has become a tradition in many homes. Yeah. So regardless कि आपने deprive किया है कि नहीं किया, the binging yeah. happens on a Sunday because it's also a family day. Yeah. So then everybody is either going out or else sitting and watching a cricket match. Yeah. Because almost every Sunday there's an IPL or there's a something or the other, Yeah. or there's a movie which has come out on Yeah. OTT platform. So it becomes a day of binging because it's a family day. Of course. Right? And I wouldn't, I mean like I wrote family here, मैं बोलना भूल गई कि family time है, फिर उसमें binge word नहीं हम यूज करते, अगेन एज आई सेड नेगेटिव नहीं, Correct. फैमिली टाइम है, हैप्पी वाइब है, वही मैंने आपसे बोला कि उसको एंजॉय करने का टाइम है. सो व्हाट मैटर्स इज कि उस फूड के पीछे मेरा इमोशन मैटर करता है. बिंजिंग इज अ नेगेटिव वर्ड. Correct. तो बस वही चीज़ है. और फिर जब हम ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली वो हंगर, एपेटाइट, बिंज, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, बिकॉज डाइट कल्चर हैज सेट इन लाइक दिस. अदरवाइज मैंने बचपन में, मुझे अभी तक याद है, मेरी मम्मी छोले बनाती थी संडेज को, कभी पूड़ियाँ घर में तलती थी और कभी भटूरे बाहर से मंगवाती थी. समथिंग लाइक दैट यूज्ड टू हैपन. सो दैट यूज्ड टू बी लाइक अ हैप्पी संडे. एंड फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल पे स्कूल जाना या वॉकिंग इन द, मतलब शाम को खेलना, तो ये सब तो सोचा ही नहीं था कि कैलोरी और ये yeah, because there was always outdoor activity, Yes. which was part and parcel of growing up years. But Yeah. now that's becoming lesser and lesser because open spaces are less, Yeah. safe spaces are less to send your Yeah, children to. yeah. So that becomes an issue. So let's go into this yay or nay section. Diet Coke, any diet soda, is it good or bad? Okay or no? या ये और ने हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हम वेट की बात करते हैं तो इट्स ये, बिकॉज अगर आपने 0 कैलोरी वाला कुछ ड्रिंक लिया है तो उसका आपके वेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. बट अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो इट्स अ ने, बिकॉज एस्पार्टेम जो यूज़ हुआ है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इन द लॉन्ग इफ़ यूर टेकिंग इट एवरी डे. हाउएवर शुगर, अगर शुगर वाला ऑल्टरनेटिव है वो भी ठीक नहीं है, बट समहाउ आपको पता है उसमें चीनी है, इसमें एस्पार्टेम है जिसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट, ये और ने लस्सी, ये वो पोएम को रेफर करना चाहिए which you were telling us about. लस्सी, good, bad? Oh, of course, it's ये. It's ये, unless it's got 7 spoons of sugar. Oh, तो उसको तो फिर हम मट्ठा बोलते हैं. हाँ, Okay. and then हाँ, you can have tons of sugar and that वो जो ऊपर से वो मलाई डाल के. Okay. So Not my scene. depending upon the person's lifestyle and physical activity, उसके according वो रहेगा लस्सी. correct. It is good for gut, but not the sugar laden one. I think I mistook lassi for the chaach, the buttermilk. So buttermilk is very Buttermilk ये. is, हाँ. Lassi could be depending upon the person's Okay. suitability. Okay. ये और ने उपमा. So to say ये, but need to have coconut chutney with it, proteins as peanuts with it, curry patta वगैरह डाल के make it a good food. Okay, with vegetables added etc. to it, otherwise on its own nothing. Yeah. ये और ने पोहा. ये सेम पोहा, मतलब ऐड वेजिटेबल्स एंड पीनट्स. पिक्चर भी बहुत ब्यूटीफुल है. उसमें नींबू डाल के और साथ में मिंट कोकोनट चटनी लेके, इट इज़ ये. It is certainly a better snack to go to for children also, rather than Definitely. going in for chicken nuggets or Nuggets. French fries or. प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए जो भी बाकी जो With हम less बच्चों को oil. ऑफर करते हैं. ऑयल, शालिनी, जो भी आपकी एज अ सेड जो विजडम है कि बहुत ज़्यादा प्लेट में ग्रीजी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, जस्ट इन मॉडरेशन. Okay, next one is ye or nay brown rice. It is a ये, but it does not really mean that white rice is a nay, because उसका भी गट हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है. और ब्राउन राइस का फिर से बीच में मार्केट इसलिए था क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है. हाउएवर all different colors of rice, brown, Red. black, white, red, they're all good. Eat in Okay. moderation. Don't overdo a thing कि ये है. And what about bread? Brown bread, wheat bread, dalia bread, multigrain bread. If you I can't stop. yeah, so many. Yeah. So if you trust from where you getting the source of the bread, if you know कि वो बनाया कैसे है, सार्डो ब्रेड है और ब्राउन ब्रेड में एक्चुअली में होल व्हीट डाला है, कितना परसेंट उसमें रिफाइंड डाला है, if you know the source, then it is okay. But otherwise many a times which It's just marketing gimmick. it's a marketing gimmick कि उसमें color add कर दिया है, but you just need to know the source of where you're procuring it from. Okay. Ye or nay olive oil. It is I think this is Shalini's bugbear. Olive oil. it is a ये, इसमें
ऑब्वियसली इट इज़ ये, इसमें गलत नहीं है, बट हम ऑलिव ऑयल की तली हुई टिक्कियों की बात कर रहे थे, तो वो ऑलिव ऑयल में प्रॉब्लम नहीं है, देसी घी में प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ कैसे करते हो वाली बात थी. So Olive how oil to is use good. it? How to use it? Yeah, Olive like The if you're best using way. extra virgin olive oil, if you put spices in it, and it makes the salad so much more palatable. if you पैलेटेबल use- एंड इट इज़ yeah. गुड, एब्जॉर्प्शन Yeah. भी बेटर है, वही एज इंसुलिन स्पाइक वगैरह डाइजेशन की बात कर रहे थे. सो ऑलिव ऑयल इज ये द बेस्ट इज टू ड्रिजल इट इन द सैलड एज मैम सेड. Instead of using a mayo or something Exactly, else, or yeah. those bane banaye salad dressings, Yeah. instead of that, if you just use garlic and olive oil, but again, like ma'am said, ki extra virgin, and you know the source. That is कि कौन सा. important. हाँ. I have seen ना that people are using it. हमने तो पराठे ऑलिव ऑयल में बनाए हैं. हाँ, बिकॉज उनका वो माइंड सेट होता है कि Olive ये oil is कुछ healthy. हेल्थ वाला कुछ कर देगा. हाँ. तो इसमें palm oil की भी बात होनी चाहिए about the dangers of palm oil Right, in yeah. that, you know, and most of our pre-packaged snacks which Biscuits are and all. yeah. So, when it अभी जैसे recently बहुत ज़्यादा we are talking about palm oil. So FMCG companies are using palm oil extensively until now चल रहा था. We need to understand कि FMCG palm oil इतना एक्सटेंसिवली यूज़ क्यों कर रहा था. सो पहली बात है, पाम ऑयल इज़ वेरी वर्सेटाइल, मतलब आपकी कुकीज़ से लेके कॉस्मेटिक तक पाम ऑयल यूज़ होता है. इट एड्स दैट क्रीमीनेस टू योर स्प्रेड, इट एड्स दैट क्रिस्पीनेस टू योर चिप्स. सो इट इज़ वर्सेटाइल एंड इट इज़ न्यूट्रल इन टेस्ट, किसी में भी डाल दो आपको पता नहीं चलेगा. It has a longer shelf life, and the most important point here is that it's cost effective. Now we also need to realize that FMCG companies का जो utmost motive है, that is profit, and for profit palm oil is a very cheap option, क्योंकि वो cheap है, वो versatile है, neutral है, with a long shelf life. Okay. However, what is palm oil? Palm oil is a saturated fatty acid. In fact, it is the richest source of saturated fatty acid. अब प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ इनविजिबल कैलोरीज, मतलब आपको नेकेड आई से पता ही नहीं चलेगा आपने कंज्यूम कितना कर लिया. इट इज़ घी का आप देख रहे हो, ऑलिव ऑयल का देख रहे हो, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा. नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनविजिबल कैलोरीज, जो कि आप अपने स्किन पे लगा के भी इंजेस्ट कर रहे हो, लिपस्टिक है उस इंजेस्ट कर रहे हो, देन दी अदर ऑल द FMCG कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके इंजेस्ट कर रहे हो, तो आपने कितना ज़्यादा उसका क्वांटिटी यूज़ कर लिया. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये सैचुरेटेड एसिड है, तो इसका लाइकलीहुड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, देर आर द चांसेस ऑफ द हार्ट डिजीजेस. सो दैट इज़ वेयर द पाम ऑयल हैज़ बीन नाउ, हमारी अवेयरनेस हो गई कि पाम ऑयल यूज़ नहीं होना चाहिए. So ingredients पढ़ना ज़रूरी है especially when you're giving it to the children, because you're also building a lifestyle for them. Yeah. They are used to eating that tikki with that ketchup. So that brand of ketchup which has the palm oil, if you're not reading what avoided. is so just read the labels on your food Ingredients and all. products. Yeah. So next what we have, ye or nay, oats. It is a ये. Oats are good, insoluble fiber, and it's a good grain. But वही बात है, ये के नाम पे मतलब सब कुछ खाना चाहिए. Oats, उपमा, दलिया, क्या था, Yeah. पोहा, so Yeah. they're all good. But किसी को भी स्टार नहीं बनाना है इनमें से. Okay. Oats otherwise is good for heart health. Fiber अच्छा है. It can be a good oatmeal, can be a good breakfast. Okay. But as I said, ये है, but don't make it a कि आजकल बड़ा सुना है वाला. Certainly. Okay. Cornflakes. Any cereal. Packaged, boxed cereals. That would be a nay for me. Nay. Yeah. So, something which was not part of our diet कि सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो जल्दी से कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया दूध के साथ एंड खा लिया, या फिर बिना दूध के भी खा लिया. Not a part of Indian diet. Became a part of Indian diet because of paucity of time. So yeah. So this there are certain foods जो आप वही because go to वाले food, मतलब ऑफिस जा रहे हैं और साथ में ही कैरी करने वाला है. There are certain because हमारा अब urbanization है, time crunch है, traffic है, help नहीं है, priorities हैं, there are kids to look after, plus मेरे email यहाँ पे ज़रूरी भेजना है, so time crunch से. But there can be good options also. जैसे हम protein powder, I would say is a good option. Okay. ऐसे बीच में फिट इन करने के लिए, बट थिंग लाइक दिस जहाँ पे आपके पास दूसरे सब्सटीट्यूट्स हैं, सो दिस इज नॉट रियली, दोज हनी लूप्स और स्टफ लाइक दिस इज नॉट रिकमेंडेड. Okay. Cornflakes. Protein bars.
At least not that kind of looking with tons of chocolate on it. Huh. It can be Nuts. actually both a ye or a nay depending upon again the source. Okay. और अगर ये प्रोटीन बार यही वाली हमने फोटो बनाई है तो आई कैन मेक अ प्रोटीन बार एट होम वेर इन विद लॉट ऑफ नट्स एंड ओट्स एंड हनी डाल के, है ना, उसको उसमें डेट्स को मेल्ट करके वॉलनट्स डाल के, तो हम प्रोटीन बार, अगर उसको प्रोटीन बार कहना है, आप उसको लड्डू कह लो, दे आर हेल्दी. हाँ. सो इट इज़ अ सोर्स Okay. which you we'll can. call it a ye or Correct. a no. Black alkaline water. अल्कलाइन वाटर में ना जैसे जो स्केल पे 7 इज समथिंग, जो पीएच है बॉडी का 7 इज समथिंग विच वी कॉल एज न्यूट्रल, एंड 7 से कम है तो उसको एसिडिक कहते हैं, और 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन कहते हैं. सो ये शुरू हुआ मार्केट में कि बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी में, तो आप अल्कलाइन करने के लिए पानी पियो. हाउएवर it is a nay for me. There are people who are consuming it because probably they like the taste of it, or the placebo effect also कि मुझको पी के अच्छा लग रहा है. But अपने पानी को alkaline करने के लिए आप थोड़ा सा उसमें cucumber mint डाल के infused करके लेते हो, so that is also good. Okay. This Shalini can go yay or nay. Green tea. Green tea, what do you suggest? शालिनी, इसमें ये है कि हमारा नैरेटिव क्या है. सो ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं. इट कैन बी गुड कि हम बैठे हैं, हमने कुछ वार्म बेवरेज पीना है, इट कैन बी गुड. बट इट्स अ ने व्हेन द नैरेटिव गोज एज ये पियो और इसको पीने से आप पतले हो जाओगे. You will reduce weight. यस, This is what I have seen. खूब सारा खाना खा लो, उसके बाद ग्रीन टी पी हाँ, लो. छोले भटूरे खाए हैं और अब ग्रीन टी पी लो, तो ये ब्लॉटिंग पेपर का काम नहीं करेगा. जो एज अ सेट जो कर्म कांड किए उसका तो हर्जाना देना पड़ेगा. बट ग्रीन टी वार्म बेवरेज, ग्रीन टी एक जनरल वर्ड है, बट देन देर आर दी जैस्मिन टी, कैमोमाइल टी, दे हैव द हेल्थ बेनिफिट्स, बट थिंग्स शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड वेट लॉस. That is where the narrative goes wrong. Then we are going into yay or nay. Tea. Just general जो वही once we've done lassi, now we want to go to tea. How many cups of tea would result in, you know, acidity, or you know that you've overdone, is depending on a person, I would think. But what would you say? This is something on this podcast that I need to be honest about कि I am a tea person. Okay. तो मेरे लिए कुछ प्रीच करना बहुत ही गलत पाप हो जाएगा. So my clients have many a time seen me drinking with tea. tea. Or yeah. Okay. So okay, tea में ना ये है, it is a ये if it is 2 to 3 cups a day. हाँ. And how are you having your tea? हाँ. As in ऐसा तो नहीं है कि चाय है और साथ में मैं बिस्किट्स खा रही हूँ डुबो के 4-5 बिस्किट डुबोए, और तो वहाँ पे फिर वो नहीं बन जाता है. चाय शुड नॉट बी द फर्स्ट बेवरेज दैट यू हैविंग राइट इन द मॉर्निंग कि मैं बेड टी पीती हूँ, उठते ही मेरी आंख तब खुलती है जब मुझे चाय मिले. हाँ. दैट इज़ वेयर द इट बी अ ने. चाय शुड नॉट बी टेकन विद अ मील बिकॉज टैनिन है, कैफीन है, टैनिन है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर आप खाने के साथ ले रहे हो. एंड इफ़ इट इंटरफेयर्स विद योर स्लीप विच मोस्टली इट डज, सो शाम को 5-6 बजे के बाद इट इज़ अ ने. And if you see, the Chinese have green tea or have jasmine tea with their food, or they Yes. drink garam pani with their food. Very good, yeah. But then there are some people who say कि पानी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ. हाँ. खाने के 2 घंटे बाद पीना 2 चाहिए. घंटे. Right. So you know when we look at the people who have their छोटा सा, you should actually see कि वो कितना छोटा कप हाँ, पानी very, पीते हैं. yeah. एंड अगर आप खाने के साथ सिप करके पानी पी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो पानी वार्म है तो वो और अच्छी बात है. खाना खा रहे हैं और एक बड़ा ग्लास भर के गल्प कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम है कि आपको एकदम से ब्लोटेड फील होगा. यू विल हैव लाइक बेल्चिंग ऑल्सो. सो दैट इज़ वेयर इट इज़ रॉन्ग. बट लिटिल स्मॉल कप, if it's a jasmine tea etc along with it, I'm so sorry, I don't really know what exactly are they drinking, but if it's a warm water or a warm fluid soup hai, so it is very good to have Good to with have the it meal, with yes. that. Okay. What I want to ask you about losing weight, we did this with other doctors also. Is skipping a meal good idea? Like for example, how many meals do we need? There are some dietitians who say 3 meals a day is what you should have, or else these many calories, stretch it over 4 meals or 5 meals. Also those 3 meals, should it be in a window of 6 hours, 8 hours, 12 hours, जो भी होता है. How do we decide, or is it individual? That's the best thing, that it is individual. Okay.
we were to talk about the weight loss. हाँ, weight loss. And how to get the weight loss and which diet is the right Yeah. approach. When I was studying nutrition, तो we used to make the meal plans depending upon vegetarian है, non-vegetarian है, कोई health condition है. However, all these years there are so many diets जो आई हैं. OMAD diet, that is 1 meal a day. Keto diet, intermittent fasting diet, Yeah. and SFM diet, small frequent meals diet, RFD diet, that is raw fruit diet. So what it boils down to is that what really agrees with you. You started your sentence that if skipping a meal is right. So skipping a meal, if we talk about the calories ka, as we were discussing, it's about Yeah. calories. So if skipping a meal is helping you maintaining a calorie deficit, कि मैंने breakfast for example नहीं किया and पूरे दिन में मैं calorie deficit कर पाई क्योंकि एक meal skip कर दिया, वो वाली calories नहीं हुआ, तो मेरा ये total calorie में मैंने deficit कर दिया. And if physically, mentally, emotionally you are happy, then it is the good idea for you. Okay. बट मैंने मील स्किप कर दिया बिकॉज मैंने कैलोरी डेफिसिट में होना था एंड नाउ आई एम एन एंग्री बॉस, आई एम अ ग्रम्पी वाइफ, आई एम अ दैट मदर, और मुझे इतना गैसियस हो रहा है और मैं शाम को जाते जाते मैं बिंज कर देती हूँ और अननोइंगली मैं कैलोरी सरप्लस कर देती हूँ, देन यू आर डिफीटिंग द पर्पस एट द फर्स्ट प्लेस. सो any of the way that you're following the diet, any of the diet that you're doing should be how it resonates with you. So now how we should be looking at the weight loss. Solution कहाँ पे है, इसका आंसर क्या है? The best weight loss what you should be aiming to achieve is 7 to 10% of your body weight in 1 year's time. अगर मैं 80 kgs की हूँ तो मुझे 1 साल में 6 से 8 किलो वेट लॉस करना एम करना चाहिए. However, when people join a dietitian, They don't, yeah. उनका पैसे भी दिए हैं, मुंह पे जिप भी लगाई है, मेरी फ्रेंड ने तो इससे ज़्यादा भी लूज़ कर लिया, तो फिर मैं उसी की डाइट क्यों ना कर लूँ. व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आप 20 किलो वेट लॉस कर भी लेते हो, वट एवर यू डूइंग, 3 महीने आप मेरे साथ हो, अभी दिवाली आएगी, वही वाली दिवाली जिसमें आप फिर से और क्योंकि आपने ये वेट लॉस किया है बहुत ज़्यादा डिप्राइव स्टेट में रह के, तो जब वो आपकी क्रेविंग्स बैकफायर करेंगी, द लॉस्ट वेट विल कम बैक विद वेंजेंस एट रॉन्ग प्लेसेस. तो आप इवेंचुअली जो मेंटेन कर पाओगे विल बी दैट परसेंट ओनली. सो गिवन एट द फर्स्ट प्लेस. और अभी तो स्मिता जी हम बात ही नहीं कर रहे कि वो मसल लॉस किया था भाई, वाटर लॉस किया था. फैट लॉस ऐसे नहीं होता है. फैट लॉस के लिए यही है कि 7 to 10% अपना बॉडी वेट एम करो टू लूज इन 1 year's टाइम. दैट ऑल्सो बिकॉज इट विल मेक यू फील हेल्दी एंड यू आर एबल टू डू योर डे टू डे chores in a better health. So if you're got a wedding in the family next year, start losing weight this Right. year. Right. Exactly. That is It's not कि sanity. 3 महीने में I have to get to that stage. Zero So figure. mostly people are doing that, right? कि शादी आ रही है तो जल्दी से जल्दी 7-8 किलो कम करो Yeah. to fit into those clothes. Yeah, in fact, you know, we had zero figure की जैसे अगर हम Yeah, बात zero करते हैं figure, ना, which was very तो much in earlier. Yeah, but please, that was during Karishma Kapoor. वो तो खत्म हो गया ना. Yeah, Kareena but, Kapoor and Karishma. Smita But ji, still- yes, you know, because I do get such clients जिनको ये Still? Still they want. especially the younger lot. और younger lot पे अब इफेक्ट क्यों हो रहा है? हमने जब वो टशन मूवी देखी थी, that was back in 2008, 9, 10, somewhere around that time. So now the younger lot is seeing the other people on Instagram and all the social medias. So this is actually my message to them कि जो आप पहली बात Instagram पे हर कोई अपनी बेस्ट पिक्चर डालता है. हाँ. और जब आप किसी फिल्म स्टार को, किसी मॉडल को, एक्टर को देखते हो, कैमरा का एंगल क्या है वो प्ले करता है. कैमरा, लाइट, फोटोग्राफर, लेट अलोन योर मेकअप जो आप प्रोफेशनली कराओगे उसके लिए, let alone those people, if we talk about even the Karishma Kapoor era that time, so they would have the doctors and dietitians and trainers जो उनका ध्यान देंगे. Then they are getting paid for it, crores of rupees for this. That is their profession. Correct. And then they also would do it for certain role and then get back to their everyday's sustainable way of living. Okay. However, for example, I'd like to talk about this model. उनका नाम है रेशल फारूक. You can search about her. She was a beautiful model. I don't know ये zero figure या body dysmorphia कब hit हुआ that she became anorexic, and if you search you'll find she has reduced to 18 kgs now. Oh God. Yeah.
And her husband has launched a campaign because he wanted to spread this awareness about zero figure or maybe anorexia. And in fact, so much so कि 18 kgs of weight, meaning health hazards so छोड़ो, life threatening hai. Yeah. So he has, a lot of funds were raised for her well-being. So now coming again back to कि आप एक अपनी अच्छी weight और health और fat range में रहो. For women, for example, 15 से लेके 25% is the fat percentage that a woman should be having. So अगर आप less में हो, lesser than this हो, definitely get better. More than this हो, definitely get better. Range भी काफ़ी wide है. 15% या 25%, whatever works for you. Whatever is not interfering in your everyday's life, whatever is not interfering with, I'm so focused on my कि नहीं मुझे डाइट करना है, मैक्रो माइक्रो ये वो करते कि मेरा डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो गया है. और क्योंकि मैं वो तो अचीव नहीं कर पा रही जिसको देख के मैं इंस्पायर हुई थी, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं कि उसका कैमरा, फोटोग्राफर वगैरह ये सब, और उसमें भी बेस्ट पिक्चर भी एडिट करके डाली जाती है. Yeah. तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू दोज डिटेल्स, बट माई self-image, my self-esteem has gone down for no reason. Especially when you see film actresses bouncing back after pregnancy. You know, in real life, when you meet people, Yeah. it takes almost a year and still you don't get back to the same levels that you were. Yeah. You cannot, you've just given birth to another human. Exactly. So, you know, to get back, but you see the film stars, jo 3 mahine mein they're back to it. So then the pressures also become, you know, कि अरे Yeah. आलिया भट्ट तो इतनी पतली इतनी जल्दी हो गई, तुमको क्या हो रहा है? Yeah, You know, those kind of mental pressures on young mothers are Yeah. tremendous to lose weight immediately. Yeah, Like, yeah. you know, so body shaming भी तो होती है. Exactly. Those who are in the limelight, उनके लिए भी तो होता है, you know, Yeah, that yeah. why do you look बिल्कुल. like this? So that also, I'm sure you must be getting a number of Yeah. people coming I to have you seen with that. news anchors as well, ma'am. They have that pressure कि आपको reduce करना है True. फटाफट से. True, And true. they are like, you know, start diet and all. Yeah, I've come across crew members also. They would be grounded कि आपका weight 1 किलो बढ़ गया है तो आप fly नहीं कर सकते, the crew member, and they need to really lose weight. एक हफ्ते में मैम lose करवा दो क्योंकि फिर मेरी job का ये Yeah. threat है. So yeah, it is like an extreme of both the things. And even those who have to go through medical checks, like you saying, airline crew, and even on the medical, in the forces, you know, when Yeah. you're in the Army, Navy, Air Force, you have a medical coming up. So they go on an egg diet and things Yeah. like that because अगर तो निकली है तो uniform में fit नहीं Yeah, आओगे आप. I So know, those yeah. issues are also there. But then Yeah. now I think everybody is getting into it. School principals are telling teachers that you cannot be, you know, even obese or morbidly obese, some of them are. Yeah, yeah. And because you're setting wrong standards for young, impressionable minds. Yeah. So teachers are also being told that get into a healthy sphere. Yeah, so get into healthy sphere yeah. is the, you know, let's not forego the term healthy. Yeah. It should be a healthy sphere. You're a role model, तो आपका healthy sphere होना चाहिए. तो उसमें आपका weight loss should not be about weight on scale. It is about your healthy habits. जो आपने आगे Yeah. represent आप जो करें वो आपकी healthy habits की बात होनी चाहिए. Yeah? Smoking, weight loss? Please tell me the connection. सो हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप स्मोक कर रहे हैं तो आपके टेस्ट बड्स, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, टेस्ट बड्स ब्लैंड हो जाते हैं, मतलब हाँ. टेस्ट बड्स इतने एक्टिव नहीं रह पाते. आई एम नॉट गेटिंग दैट टेक्निकल वर्ड फॉर इट. तो Dissolve. हाँ, मतलब कुछ हो जाता है, डिस्टॉर्ट Distort, हाँ. Distort. थैंक यू फॉर गेटिंग मी देयर. सो स्मोकिंग करने से आपके टेस्ट बड्स थोड़े डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो आपका फिर वो एपेटाइट भी कम हो जाता है. Okay. बट इवेंचुअली यू शुड नॉट बी स्मोकिंग. Yeah. अब जब आप उसको क्विट करते हैं तो फिर आपकी एपेटाइट और आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. सो देन यू नीड हैंड होल्डिंग एंड अ प्रॉपर सप्लीमेंट एंड ट्रीटमेंट देयर. सोनिया, मैं जानना चाहती हूँ जैसे कि इंस्टाग्राम पे और वैसे भी सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे, दैट इज़ सत्तू. व्हाट डू यू थिंक, सत्तू इज़ अ हेल्दी ड्रिंक? या सो वायरल अब हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन इंडिया. सो फॉर दोज हु डोंट नो, सत्तू इज़ द भुने चने का पाउडर, राइट? सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ड्रिंक. इट इज़ रिच इन प्रोटीन. इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखते हैं. 100 ग्राम ऑफ सत्तू हैज़ 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन. एक स्कूप वे also has 25 ग्राम प्रोटीन. Okay. But the difference is कि 100 ग्राम सत्तू में आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 कैलोरीज मिलेंगी.
एक स्कूप वे में आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 120 to 130 कैलोरीज मिलेंगी. So obviously sattu is 3 times more in calories if we talk about. Okay. Now अगर आप कैलोरी डेफिसिट को देख रहे हो, इफ somebody is looking at the calories and they want to remain in calorie deficit, so sattu will not really be an ideal choice because कितनी कैलोरीज तो वहीं पे खा लिया. In that case they would be like likelihood कि वो वे लेंगे. However अगर आप कैलोरी बाय कैलोरी काउंट नहीं कर रहे हो तो सत्तू is a good choice. Despite having said this all, I will say there is a different target audience for sattu and for whey protein. And they can't replace each other. Let's see how. तो एक तो हमने कैलोरी की बात कर दी. दूसरा प्रोटीन जो वे प्रोटीन है वो है कि आप वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में. तो आपने वर्कआउट किया, उसके बाद आपको मसल रिकवरी चाहिए, तो आप जल्दी एब्जॉर्ब करने वाला आपने वे लिया. सत्तू हाउएवर इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोडक्ट, तो वो टाइम लगाता है डाइजेस्ट करने में. सेकेंड फर्दर आई मीन टू से इज़ whey is less in fiber. It is like no fiber, but sattu is very high in fiber, which means कि आप whey तो एक बार में ग्लास लिया आपने पी लिया, but अगर आप सत्तू उतने प्रोटीन के लिए उतना जितना हमने डिस्कस किया वो अगर आप एक बार में पियोगे तो you might have indigestion, diarrhea, bloating and diarrhea. Further सत्तू में अगर 100 ग्राम सत्तू की ही बात करें तो उसमें इतना फाइबर है, insoluble fiber, that when you drink it has like 15 ग्राम ऑफ फाइबर. आपको एक दिन में 30 ग्राम फाइबर चाहिए, तो आप उस ड्रिंक में एक ही बार में इतना फाइबर ले लोगे तो ऑब्वियसली एज अ सेड कि वो इनडाइजेशन और इतना ज़्यादा आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी. विच मीन्स अगर आपने सत्तू ही लेना है तो आप पूरा दिन सिप सिप करके पीते रहो टू मीट दैट न्यूट्रिशनल नीड. ओके, so that is a difference. It's also if you're doing manual labor, then you can burn that kind of thing. Exactly. So depends on your kind of lifestyle also. Yeah, so that is what I said कि उनका different target audience है सत्तू एंड वे का. एक और बात है कि सत्तू may have fermentable कार्बोहाइड्रेट्स, उसको कहते हैं FODMAP, fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols. So FODMAP का मतलब होता है कि there are some people जिनको ये FODMAP कुछ लेकर उनका IBS ट्रिगर हो सकता है. irritable bowel syndrome. Yes, so that because is fiber ज़्यादा आ गया. हाँ जी, और वो भी FODMAP में ये जो आता है fermentable वन में आता है. So that is the reason कि आपका how you need to now choose कि आपके लिए क्या ठीक है. And yeah, it should so, be in only under supervision, right? If it's not working for you, then stop. Yes. Just because it's on Instagram doesn't mean that it's good for you. Right. Yeah, so आपको क्या सूट करता है और आपके क्या न्यूट्रिशनल गोल्स हैं और क्या आपको मैटर करता है. All right. On that note, thank you so much, Dr. Sonia, for coming and explaining so many of our myths and realities and telling us what's going to be good for you. So I'm very grateful that you found the time to come and spend time with us. Likewise. Just had a lot of fun. Okay. Thank you so very much for having me. Thank you. Thanks, Shalini. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.